سوال جب بھی نبی کے دشمن کریں گے سنی کے عالموں سے تو نجدیوں کا وہابیوں کا تو نجدیوں کا وہابیوں کا بریلی والا جواب. السلام علیکم رحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. میرے سلام کا جواب وفادار رسول دے. سامعین اکرام، سب سے پہلے میں تھوڑا سا آپ لوگوں کو یاد دلا دوں کہ ابھی 1 سوا سال پہلے کی بات ہے کہ یہ پوری وہابیت کس طریقے سے بھاگی مناظرے کا چیلنج کر کے. کبھی دلی، کبھی گونڈا، کبھی I+، یہ سب آپ جانتے ہیں. آپ نے ریکارڈنگیں ساری سنی ہیں، یوٹیوب پر موجود ہے. ایک بھی ریکارڈنگ ہم لوگوں نے اسکپ نہیں کی ہے، چاہے 2 منٹ بات ہوئی ہو یا 3 منٹ بات ہوئی، ساری ہم نے یوٹیوب پر ڈالی ہے. تو چلے گفتگو شروع کرنے سے پہلے، بات شروع کرنے سے پہلے، سب سے پہلے آپ یہ جو وائس کی چند ریکارڈنگیں ہیں جو شرائط کے طور پر ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر آئی ہیں اور گئی ہیں، اس کو پہلے آپ پورا سن لیں، اس کے بعد بات آگے کرتے ہیں انشاءاللہ. ریکارڈنگ کو اسکپ نہیں کیجیے گا، بالکل بھی پورا سنیے گا. پورا سنیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی اور ان وہابیوں کی حقیقت آپ کے سامنے پہنچ جائے گی. دیکھیے بھائی، آپ نے بہت دن سے مجھے میسج کر رہے ہیں کہ گوگل میٹ پر ایک وہابیوں کا کوئی عالم ہے، وہ بات کرنے کے لیے بلا رہا ہے. تو آپ نے اس کا نام بتایا محمد رضا. تو میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ میں تیار ہوں بات کرنے کے لیے. میں اپنی وائس آپ کو دے رہا ہوں، اس تک پہنچا دیجئے اور اسی شرائط کے تحت بات ہوگی. تو میں اپنی زبان سے کچھ نہیں کہوں گا، بس اتنا کہوں گا کہ یہ میرا نام سنتے ہی بھاگے گا. اور آج سے نہیں بھاگ رہا، یہ 2 سال سے بھاگ رہا ہے مجھ سے. وہ کیوں بھاگ رہا ہے، کیا وجہ ہے اس کے بھاگنے کی، اور اس کے اوپر اس کے دارالفتہ سے کیسے ہم نے فتوے لیے ہیں، کیا وہ ساری باتیں آپ کے سامنے آ جائیں گی. لیکن بس میں اتنا بتا دیتا ہوں آپ کو کہ میں آپ کو وائس دینے کے لیے تیار ہوں. آپ وائس مجھ سے چاہ رہے ہیں، میں دے رہا ہوں. اور جیسے ہی میں وائس دوں گا، دیکھیے گا یہ میری آواز سن کے ایسا بھاگے گا، ایسا بھاگے گا کہ یہ مناظرہ کرے گا ہی نہیں. ٹھیک ہے؟ تو میں آپ کو وائس دے رہا ہوں، آپ اس تک پہنچا دیجئے. آپ بھی سن لیجئے، اس تک پہنچا دیجئے، اور وہاں سے وہ کیا ریپلائی کرتا ہے، کیا جواب دیتا ہے، وہ آپ مجھ تک پہنچائیے. ٹھیک ہے؟ تو میں شرائط، جو بھی شرائط ہیں دوران گفتگو جو شرائط ہوں گے وہ شرائط میں آپ کو بھیج دیتا ہوں. میں اس کے شرائط کا انتظار کرتا ہوں. السلام علیکم رحمۃ اللہ. جی دیکھیے، جو ٹاپک لیا جائے گا وہ ٹاپک یہ ہوگا: گستاخ کون، مسلک اعلی حضرت والے یا اہل حدیث. شرط نمبر 1، گوگل میٹ ہم بنائیں گے، ہمارے گوگل میٹ پر اس کو آنا ہوگا. 3 لوگوں کو اس کو لانا ہے اور 3 لوگ ہمارے رہیں گے. امانت میں کوئی خیانت نہیں ہوگی، کہیں سے ریکارڈنگ کٹ نہیں کیا جائے گا اور کسی کی وائس کو میوٹ نہیں کیا جائے گا. یہ ہمارا وعدہ ہے، اور وعدے پہ ہم اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ ہم اللہ کی قسم کھا کے کہتے ہیں کہ ہمارے گوگل میٹ پر ہم کسی کی بھی وائس کو میوٹ نہیں کریں گے اور نہ ہی اس میں امانت میں خیانت کریں گے. جہاں سے بات شروع ہوگی وہاں سے لے کے اینڈ تک مکمل گفتگو سنائی دے گی. دوسری بات یہ کہ مد مقابل اپنا دعویٰ پیش کریں گے، دعوے پہ دلیل پیش کریں گے، اور ان کا دعویٰ اگر ان کے اکابرین کے دعوے کے برحس ہوا، یعنی الگ ہوا، تو ان کو وہی حکم لگانا پڑے گا اسی وقت جو حکم وہ ہم پہ لگائیں گے. شرط نمبر 3، گفتگو کے دوران کوئی بد کلامی، بد زبانی نہیں ہوگی. شرط نمبر 4، مدعی گفتگو شروع کرنے سے پہلے اپنا مسلک، اپنا منہج، اپنا ماخذ اور اپنے اکابر کا خلاصہ کرے گا، اور جو وہ خلاصہ کرے گا اسی خلاصے کے ماتحت گفتگو ہوگی. نمبر 4، 3 منٹ، 4 منٹ یا 2 منٹ، جو اصول بنانا چاہتے ہیں وہ اصول پر بات ہوگی. ایک دوسرے کے بیچ میں کوئی نہیں بولے گا. ہاں، اس کو بولنے کی آزادی جب ہوگی جب وہ کوئی حوالہ پیش کرے گا تو وہ حوالہ اس کو شروع سے پڑھنے کے لیے، یا جہاں سے بات شروع ہو رہی ہے وہاں سے پڑھنے کے لیے کہا جائے تو اسے پڑھنا ہوگا. یہ نہیں کہ حوالہ بھیجا اور بیچ میں سے بات شروع کی.
चौथी बात कि बतौर दरमियान तो मद्दे मुकाबिल के बीच में एक एक हकम होगा जो उनको वक्त की तंबी करेगा कि आपका वक्त हो चुका है। दूसरे के अलावा तीसरे को बोलने की इजाजत नहीं होगी। अगर तीसरा बोला तो उसकी उसी वक्त शिकस्त हो जाएगी। और तंबी करने के बाद भी खामोश अगर सामने वाला नहीं होता तो उसकी शिकस्त का ऐलान कर दिया जाएगा। तो ये शराइत है, इसी शराइत के तौर पे बात होगी। अब चाहे वो गूगल मीट पर बात करें या वो यूट्यूब पर लाइव आ जाए या सामने बैठने के अहल है तो सामने बैठ जाए, ये तीनों चैलेंज हमारा है। शर्त वही होगी जो हमने आपको बता दी कि गूगल मीट हमारा होगा, क्योंकि इनके गूगल मीट पर हमारे जो भी आदमी गए हैं ये कभी म्यूट कर देते हैं, कभी उसको बोलने नहीं देते हैं, ये 7-8 लोग चिल्लाना शुरू कर देते हैं। उसका एक सबूत मेरे पास भी है क्योंकि मैं भी गया था और बतौर गुफ्तगू जब गुफ्तगू शुरू हुई तो इन लोगों ने चिल्ला चिल्ली शुरू कर दी थी। और इनकी यही आदत रहती है, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप में भी ये बात करते हैं तो व्हाट्सएप में भी जो अगर कॉलिंग पर बात हो रही है तो भी ये म्यूट कर देते हैं। कई बार इन्होंने मेरे साथ भी किया, अमन भाई के साथ भी किया। तो गूगल मीट हमारा होगा, हम बनाएंगे और हमारी आईडी पर इनको आना होगा, ठीक है। तो ये शर्त के साथ बात होगी। और एक मौका है, और एक सुनहरा मौका है, अगर आप इस पे बात नहीं कर सकते तो कॉल पर आ जाइए। कॉल पर 2-2, 3-3 मिनट की गुफ्तगू हो जाएगी और एक हकम आपका हो जाएगा, एक हकम हमारा हो जाएगा। अब आपके ऊपर है कि आप गूगल मीट पर बात करना चाहते हैं, सामने बैठना चाहते हैं, या यूट्यूब पर लाइव आना चाहते हैं, या फोन पर आना चाहते हैं, या जहां पर आपको सहूलियत है वहां पर आना चाहते हैं, ठीक है। ये हमने आपको खुला चैलेंज और खुली छूट दे दी। मोहम्मद रजा साहब, आपको हमने, हमारी तरफ से चुनौती है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, आपका भी यूट्यूब चैनल है, हमारा भी यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब पर लाइव आ जाइए। गूगल मीट पर आना है तो हमारे गूगल मीट पर आ जाइए। अगर आपको सामने बैठने का शौक है तो सामने बैठ जाइए, और अगर आपको फोन पे बात करने का है तो फोन पे बात कर लीजिए। ये हमारे चैलेंज है, अब एक्सेप्ट तुमको करना है और हमारी खुली चुनौती है। और हम जो गुफ्तगू करेंगे ये साबित करेंगे कि अहले हदीस ही गुस्ताखे रसूल है और गुस्ताखे अल्लाह भी है, ठीक है। तो ये हम साबित करेंगे और आपको भी यही साबित करना होगा, और यही टॉपिक है, क्योंकि बात यहाँ गुस्ताखी पर है और बात यहाँ पर मसलक पर है कि किसका मसलक वाज़े है, किसका मसलक सही है। तो आप जब वक्त लेना चाहें, जिस वक्त आना चाहें, जिस वक्त कहना चाहें, बस 3-4 घंटे पहले आप बता दीजिए कि हाँ मैं इस वक्त फ्री हूँ और इस वक्त मैं गूगल मीट पर 3 बंदे लेकर के अपने आऊँगा। तो आपकी गुफ्तगू जब शुरू होगी जब आप अपनी एक वॉइस भेजेंगे कि हाँ भाई मैं 3 घंटे या 4 घंटे पहले फ्री हूँ, बाद फ्री हूँ, या मैं इस वक्त फ्री हूँ या इस वक्त आऊँगा, उसी वक्त आपकी हमारी गुफ्तगू शुरू होगी। हम अपनी तरफ से कोई वक्त नहीं दे रहे हैं, हमने आपके ऊपर छोड़ा, ठीक है। तो ये हमारी खुली चुनौती है। और अगर आप बात करने के अहल नहीं है तो आपके अंदर जो सकात रखता हो, आपका कोई भी आलिम हो, कोई भी हो, वो आ सकता है। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इसको मेरा पैगाम पहुंचा दो कि मुनाजरा तो मैं तुझसे करूंगा और गूगल मीट पर करूंगा, ठीक है, अपना लिंक बना लो, कोई हर्ज नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे लिंक पर आइए, आप अपना लिंक बना लो, मुझको बुला लो, 3 बंदे मेरे होंगे यानी मुझे लगाकर, और 3 उसके हो जाएंगे उसको लगाकर, 6 बंदे होंगे, ठीक है। कोई हर्ज नहीं है। डेट भी मैं बता दूंगा, टाइम भी मैं बता दूंगा कब करना है। लेकिन इससे जो मेरा मुनाजरा तय पाया था वो था मौजूए वसीला के ऊपर। एक बार इससे तस्लीम करा लें कि इसकी मौजूए वसीला पर बात करने की हैसियत नहीं है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला लेना कैसा। अगर ये इस पर इनकार और शिकस्त लिख के दे देता है, फिर मैं इससे अगले मौजू पर बात करूँगा कि गुस्ताख कौन, और फिर इनकी जो कच्चा और चिट्ठा है ना वो खोल कर रख दूंगा इंशाअल्लाह। लेकिन पहले इससे तस्लीम करा लो कि मौजूए वसीला पर बात करने की हैसियत नहीं रखता, क्योंकि ये मकरूज़ है मेरा, इससे मेरा मुनाजरा तय पाया था।
وسیلہ کے موضوع پر، ابراہیم علیہ السلام کے والد مشرک ہیں یا نہیں، اس پر بھی بات ہونی تھی، لیکن چلو وہ کال پر تھوڑی سی کر لیا تھا تو جھوٹ بول کے بھاگ لیا تھا۔ اب میرا اس سے یہ ہے اعلان کہ موضوع وسیلہ پر کھلا جو چیلنج دیا تھا نا، اس مقروض اس قرض کو ادا کر دے یا انکار کر دے کہ وسیلہ پر میں بات نہیں کر پاؤں گا، میرے بس کی نہیں ہے، تو پھر میں آگے کا موضوع رکھتا ہوں۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ۔ میرے سلام کا جواب میرے وفادار رسول بھائی دیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اس نے ایک الزام لگایا کہ میرا اور اس کا موضوع تھا وسیلہ، میں اس کو چیلنج کرتا ہوں اور 1000 روپے کا اس کو میں انعام دوں گا، یہ مجھے دکھا دے کہ اس نے مجھے کب چیلنج کیا کہ یہ مجھ سے وسیلے پہ بات کرنے کے لیے مناظرہ کرے گا، یہ مجھے دکھا دے بس ایک بار۔ یہ جھوٹ بولنا، فریب کرنا ان کی خون میں اور ان کی فطرت میں ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب ہمارا اور اس کا مناظرہ طے پایا تھا تو موضوع طے ہی نہیں ہوا تھا، جو دہلی میں بیٹھنے کی بات ہوئی تھی۔ وہاں سے یہ بھاگا، اس نے کہا میں 2 گھنٹے میں پہنچ جاؤں گا گونڈا۔ میں نے اس سے کہا تھا کہ بھائی وہاں پہ ایئرپورٹ کیا تمہارے والد صاحب نے بنایا ہے؟ تو یہ فون کاٹ کے بھاگا تھا، جب سے آج تک یہ بھاگ رہا ہے۔ میں اس سے مطالبہ کرتا ہوں مجھے ایک وائس یہ دکھا دے کہ اس کا اور میرا جو ٹاپک تھا وہ وسیلے پہ کبھی بات کرنے کے لیے اس نے مجھے چیلنج کیا ہو یا نہیں، جبکہ 7 یا 8 موضوع پر میں نے اس سے جو بات کی ہے وہ ساری ریکارڈنگ میرے چینل پر پوری ڈلی ہوئی ہے۔ میرا اس سے یہ بھی مطالبہ ہے کہ اس کی میری جو بھی بات ہوئی میلاد النبی پر ہوئی، اختیارات پر ہوئی اور ابراہیم علیہ السلام کے والد کے تعلق سے ہوئی، جو بھی میری اس کی بات ہوئی ہے وہ ساری ریکارڈنگ پوری کی پوری یوٹیوب پر چڑھی ہے۔ اس نے میری ایک ریکارڈنگ پوری کہیں نہیں ڈالی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس نے جو موضوع دیا ہے وسیلہ، تو میں اس کو یہ کہتا ہوں کہ تیرا یہ موضوع ہے یہ مجھ پر رہا ادھار، لیکن جو پہلے میں نے مطالبہ کیا ہے تجھ سے کہ گستاخ کون، اگر تو اس پر بات کرنے کا اہل نہیں ہے، کیونکہ مطالبہ میں نے کیا ہے نا، اختیار تو نے ہمیں دیا تھا، تو اگر تو اس پر بات کرنے کا اہل نہیں ہے تو تو کہہ دے کہ نہیں بھائی میں اس پر بات نہیں کر سکتا، میں وسیلے پر ہی بات کروں گا۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ تیرے گھر کا چٹھا میں کھولوں گا کہ وسیلے پر جو ہماری بات طے ہے کہ حکم شرع لگانا ہوگا کہ اگر وہ عقیدہ تیرے گھر سے میں نے ثابت کیا تو تیرے گھر کی جب کتابیں اور تیرے گھر کا جب چٹھا کھولوں گا نا میں، تو بھاگے گا پھر ادھر سے ادھر۔ اب تو مجھے یہ بتا، مطالبہ پہلے میں نے کیا اور تیرا مطالبہ کہیں موجود نہیں ہے کہ میں نے جمشید علی قادری کو وسیلے پہ چیلنج کیا ہو یا بات کرنے کے لیے کہا ہو، حالانکہ پہلے اختیار میں نے تجھ کو دیا تھا، تیرے مہتاب کو، جب اس نے مناظرے کا چیلنج کیا تھا دلی میں بیٹھنے کے لیے، میں نے کہا تھا جو موضوع تو چننا چاہے چن دے، وہ ریکارڈنگ میری یوٹیوب پر چڑھی ہوئی ہے۔ اب رہی بات تیری، تو تیرا جو چیلنج ہے نا وہ مجھے ایکسیپٹ ہے، وسیلے پر بات کرے گا، اور وسیلے پر تیری جن لوگوں سے بات ہوئی ہے وہ ریکارڈنگ رفایت علی صاحب کی اور کیا نام ہے حافظ صاحب کی ریکارڈنگ بھی وسیلے پہ پڑی ہوئی ہے، جو تو ان سے بھاگا تھا۔ تو نے کہا تھا کہ مصنف ابن ابی شیبہ کی جو حدیث ہے اس میں 2 راوی ہیں، حامش اور ابو صالح، تو حافظ منور صاحب نے جو تجھے دکھایا کہ یہ تو بخاری کے راوی ہیں تو بھاگا تھا۔ تو یہ سارے معاملات منظر عام پر ہیں، چھپے نہیں ہیں، چڑھے ہوئے ہیں یوٹیوب پر۔ تو تیرا چیلنج مجھے ایکسیپٹ ہے، لیکن تو پہلے مجھے یہ بتا دے کہ جو تو نے ہمیں اختیارات دیے تھے کہ بھائی یہ موضوع تم چن لو اور وہ ریکارڈنگ تیری موجود ہے، تو بھائی اگر تو گستاخی کون پر بات کرنا چاہتا ہے تو کر، نہیں تو مجھے بتا دے نہیں بھائی میں وسیلے پہ ہی کروں گا، تو انشاءاللہ پھر ہم تیرے گھر کا چکا جب کھولیں گے اور تجھ سے جب حکم مانگیں گے تو حکم لگانا ہے اور پھر آگے بڑھنا ہے۔ اب فیصلہ تجھے کرنا ہے، تیری وائس کا انتظار کرتا ہوں۔ اور میں تو تجھے کب سے چیلنج کر رہا ہوں کہ بھائی تو بھی دلی میں بھی دلی میں ہوں، آجا سامنے بیٹھ جاتے ہیں، بتا کب آنا ہے۔ لیکن تو کیا ہے، کیا بولوں میں، اب زیادہ بولوں گا تو بولیں گے کہ جمشید قادری بولتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب رہی بات گوگل میٹ پر، تو بالکل گوگل میٹ پر تو میں بالکل تیار ہوں، آئی ڈی ہم بنائیں گے اور تجھے آنا ہوگا، تیری ساری شرطیں منظور ہیں۔ اگر تو گستاخ کون پر بات نہیں کر سکتا تو الحمدللہ ہم وسیلے پر بات کرنے کے لیے بالکل تیار ہیں۔ تو ذرا مجھے بتا دو کہ نہیں بھائی میں وسیلے پہ ہی بات کروں گا، تو تیار ہے، اور دن اور تاریخ کو اپنی سہولیت کے حساب سے ہمیں بتا دے اور ہم انشاءاللہ حاضر ہو جائیں گے۔ اب دوسری بات اس نے یہ بولی کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد پر تھوڑی سی بات ہوئی تھی اور یہ جھوٹ بول کے بھاگ گیا تھا۔ جناب من
میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یوٹیوب پر ریکارڈنگ میں نے ڈالی ہے اور جھوٹ تم نے بولا تھا، تفسیرات پر جھوٹ تم نے بولا تھا، اور تم نے یہ کہا تھا کہ قرآن پر مفسرین کی تفسیر لاتا ہے، اور جبکہ تو خود امام طبری کی تفسیر لے کر کے آیا تھا. تو تیرا وہ کلا چکا تو میں نے یوٹیوب پر ڈالا، تو نے کہا ڈالا بھائی؟ جو میرے پہ الزام لگا رہا کہ تھوڑی سی بات ہوئی تھی، معاذ اللہ تیری تو اچھی خاصی اس کے اندر شکست ہوئی ہے. ریکارڈنگ میں نے ڈالی ہے. اور رہی وسیلے پہ، تو میرا چیلنج ہے، مجھے ایک وائس دکھا دے جو تیری میری بات وسیلے پہ ہوئی تھی، یا تو نے مجھے وسیلے کا چیلنج دیا تھا. جھوٹ بولتے ہوئے شرم نہیں آتی ہے؟ جھوٹ بولنا تو تمہاری فطرت کے اندر ہے. میں تو تجھے اختیار دیتا ہوں کہ تجھے جو موضوع چاہیے وہ لے لیو، ٹھیک. لیکن جو پہلے میں نے مطالبہ کیا ہے، کیونکہ میں نے تجھ کو دعوت دی ہے اپنے گوگل میٹ پر آنے کی، تو میں نے جو مطالبہ کیا ہے تو بتا دے کہ میں اس پہ نااہل ہوں بات کرنے کے لیے، تو پھر انشاءاللہ وسیلے پہ ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں. جمشید قادری ایک نمبر کا جھوٹا اور مکار یہ شخص ہے. کئی مرتبہ اس نے چیلنج مجھ کو دیا تھا گوگل میٹ پہ، یہ کہہ رہا تھا کہ تو آنا اور میں آؤں گا، بس ایک بندہ ہوگا ہمارا ریکارڈنگ کرنے کے لیے. موضوع وسیلہ رکھا تھا اس نے. میرا فون اسنیچ ہونے کی وجہ سے میں دکھا نہیں سکتا وہ ریکارڈنگ، کیونکہ میرا فون آپ جانتے ہیں کہ وہ اسنیچ ہو چکا ہے، جس میں تمام چیزیں موجود تھیں. اور یہ مکار ظالم کہیں کا کہہ رہا ہے کہ میری بات ہی نہیں ہوئی وسیلے پر، کبھی طے ہی نہیں پائے. جھوٹا ہے. اس نے خود طے کیا تھا کہ میں وسیلہ کے موضوع پر بات کروں گا. دوسرا اس نے کہا ہے کہ تو نے مجھے اختیار دیا ہے، وہ ذرا مجھے بتا دے کہ میں نے تجھے کب اختیار دیا کہ تو کسی موضوع پر بات کر رہے. میں کہتا ہوں نا، وہاں بھی ہو اور بدتمیزی نہ کرے، ایسا ہو نہیں سکتا. دیکھیے اب یہ بدتمیزی پر آ گیا. میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کوئی ایسی بات ہمارے اس کے درمیان نہیں ہوئی تھی کہ موضوع وسیلہ ہوگا. اور یہ کہہ رہا ہے کہ اس کا فون مس میچ ہو گیا تھا، لیکن الحمدللہ جمشید علی قادری کا فون مس میچ نہیں ہوا. وہ پوری ریکارڈنگ یوٹیوب پر پڑی ہے. جب تیرے ایک چیلے نے لائیو یوٹیوب پر آنے کی بات کی تھی وہ بھی پڑی ہوئی ہے. جو تیرا ہمارا 5 تاریخ کو مناظرہ طے دلی میں ہوا تھا وہ بھی پڑی ہوئی ہے. تیری ساری ریکارڈنگ پڑی ہوئی ہے. اور میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اتنا بڑا یہ جھوٹا ہے، یہ اتنا بڑا فریبی ہے، مکار ہے کہ یہ زبردستی مجھ پر تھوپ رہا ہے. میں کہہ رہا ہوں محمد رضا، نام نہاد رضا، تو نے کب مجھے وسیلے پر چیلنج کیا؟ جب بھی تیری میری بات ہوئی تو میری آواز سن کے بھاگا. ابھی میلاد النبی صلی اللہ تعالی وسلم کے موقع پر کسی نے تجھے لائن پہ لیا، میں نے کہا میں جمشید علی قادری بول رہا ہوں، تو نے کہا کیا لڈو باٹو، ٹھیک ہے، اور تو گالی بک کے بھاگا. وہ ریکارڈنگ بھی یوٹیوب پر پڑی، ٹھیک ہے، تو گالی بک کے بھاگا، تو جملہ استعمال گندا کر کے بھاگا. اور جب بھی تو میرے سامنے آیا، چاہے میں تیری میری گفتگو 1 منٹ کی ہو، 2 منٹ کی ہو، 10 منٹ کی ہو، ساری ریکارڈنگ ڈالی ہے میں نے. ایک ریکارڈنگ ایسی نہیں ہے جو میں نے نہ ڈالی ہو. اب تو بیچارہ لاچار ہے. تجھے پتا ہے کہ جمشید علی قادری نے جو مجھے موضوع دیا ہے گستاخ کون، اس میں میری حالت خراب ہونے والی ہے. میں تو پھر بھی کہہ رہا ہوں کہ الحمدللہ میں تیری ٹاپک پر بات کرنے کے لیے تیار ہوں. لیکن جب تو ہمارے گوگل میٹ پر آ رہا ہے تو موضوع تو ہمارا ہونا چاہیے، کیونکہ جب ہم تیرے گوگل میٹ پر گئے تھے تو موضوع تو نے رکھا تھا، ٹھیک ہے. تو میں تو ہر دم تیار ہوں الحمدللہ. لیکن تو جھوٹ بول رہا ہے، اور اتنا بڑا جھوٹ بول رہا ہے، اس کو ثابت نہیں کر پائے گا، ٹھیک. کیونکہ میں تو ڈنکے کی چوٹ پر میں نے چیلنج کیا تھا. ایک ریکارڈنگ دکھا دے مجھے، ایک وائس دکھا دے جو میں نے تجھے وسیلے پر چیلنج تو نے مجھے کیا ہو اور میں نے ایکسپٹ نہ کیا ہو. ایک دکھا دے، بس ایک کا محتاج ہوں میں. اور میں تجھے ایسی کئی ریکارڈنگ دکھا سکتا ہوں جو میں نے تجھے چیلنج کیا اور تو بھاگا ہے. کئی ریکارڈنگ، ایک نہیں کئی ریکارڈنگ، اور ساری یوٹیوب پر پڑی ہے. میلاد النبی پر تو کسی کو لے کر کے آیا تھا، جیسی میں نے بولا کہ بھائی یہ لغت تو صحابہ کے دور میں نہیں تھی، تو بھاگا. تو میں جھوٹ بولتا نہیں ہوں، اور بولتا وہی ہوں جو ڈنکے کی چوٹ پر صحیح ہو، ٹھیک ہے. تو اب تو بیچارہ پریشان مت ہو، ابھی تو ابتدائے عشق ہے، روتا ہے کیا آگے آگے دیکھ ہوتا ہے کیا، ٹھیک ہے. تو نہیں دکھا پائے گا تو تو مجھے بتا کہ میں بھائی گستاخ کون اس پر بات نہیں کر سکتا. تو الحمدللہ میں وسیلے پر تیار ہوں بات کرنے کے لیے، ٹھیک ہے نا. میں نے یہ تو نہیں کہا کہ میں وسیلے پر بات نہیں کروں گا، میں نے کہا یہ موضوع آگے کے لیے رکھ. لیکن جس پر میں نے چیلنج کیا ہے
اختیار تو نے دیا تھا جس پر میں نے چیلنج کیا ہے ہمارے گوگل میٹ پر آنے کا. تو میں نے جو چیلنج کیا ہے گستاخ کون, پہلے اس پر تو آ جا, اور اگر تو نہیں آتا تو بول دے کہ نہیں بھائی میں اس میں نہیں بات کر سکتا, پھر میں وسیلے پہ آ جاتا ہوں, کوئی دقت نہیں ہے الحمدللہ. ابھی جب تو نے یہ کہہ دیا کہ تمہارے گوگل میٹ پر میں آنے کے لیے تیار ہوں, تم آئی ڈی بنا لینا, تو جب ہم تجھ کو اپنی آئی ڈی پر بلا رہے ہیں تو ہمارے گھر تو آ رہا ہے تو دعوت تو ہم دیں گے نا. اب ہم جو کھلائیں گے تجھے کھانا پڑے گا, اتنا تجھے شعور نہیں ہے, اتنا شعور تو ہونا چاہیے نا تجھے. جب ہماری دعوت تو نے ایکسیپٹ کی تو میں نے موضوع دیا. گستاخ کون؟ ارے میں نے تو پورے مسلک کی بات کی, میں نے تو کوئی ایک ٹاپک چنا ہی نہیں, میں نے پورے مسلک کی بات کی ہے. پورے مسلک کا مطلب یہ ہے کہ کس کا مسلک ٹھیک ہے, بات تو مسلک کی ہے نا. تو آجا, اگر تو مسلک تیرا حق پر ہے, تیرے اکابر حق پر ہیں, تیرے عالم حق پر ہیں, تو اتنا ڈر کیوں رہا ہے؟ آجا پھر. لیکن نہیں, تو آئے گا ہی نہیں, تجھے پتا ہے رگڑ دے گا جمشید علی قادری. ٹھیک ہے, تو جب ہم نے تجھے اپنے گھر کی دعوت دی ہے تو موضوع بھی تو ہمارا ہی ہوگا نا. اب رہی بات اختیارات کی, ٹھیک ہے, تو اختیارات تو جب ہوتے تیرے کہ جب میں ایسا ٹاپک رکھتا جو ٹاپک صرف اور صرف سنگل ہوتا, جیسے اختیارات کے رسول پر ہوتا, وسیلے پر ہوتا, علم غیب پر ہوتا. لیکن یہاں مسلک کی بات ہے نا, تم لوگ ڈنکے کی چوٹ پر کہتے ہو مسلک اہل حدیث حق پر ہے, کہتے ہو نا بھائی, تو پھر اسی پورے مسلک پر گفتگو کر لیتے ہیں نا, کس کا مسلک حق پر ہے. بھاگنے سے تو نہیں ہوگا, اگر آؤ حق پر ہو تو قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین, آؤ اگر تم حق پر ہو تو واضح کرو اپنا حق. ٹھیک ہے, تو ہم تو الحمدللہ ثم الحمدللہ, تیرے کو بھی میں نے ڈنکے کی چوٹ پر پہلے بھی کہا تھا بریلوی کا ایک عمل شرک یا بدعت ثابت کر دے, تو آج تک کر نہیں پایا. میں پھر ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں آپ پورے مسلک پر بات کرتے ہیں, کون سا مسلک حق پر ہے؟ کہہ رہا ہے کہ فون مس میچ ہو گیا تھا. جاہل کہیں کہ فون مس میچ نہیں, فون سنیچ ہوتا ہے. اتنا بڑا تو جاہل ہے. ابے تیرا فون اگر چوری ہو گیا, اگر میں نے یہ کہا کہ تیرا فون مس میچ ہو گیا تو اس کا معنی تو نے نہیں سمجھا, اسی لیے کہتا ہوں نا اہل حدیث جاہل ہے. ابے مس کا مطلب تیرا فون مس ہو گیا, اب میچ کا مطلب تیری میری بات میچ کیسے کرے گا؟ تو مس میچ کا مطلب یہ ہوا کہ تو مس کر بیٹھا ہے ان باتوں کو, لیکن میں تھوڑی کر بیٹھا ہوں مس ان باتوں کو. اب یہ دیکھ, میں نے یہ ریکارڈنگ لگائی ہے, اس کے 25-26 منٹ کے بعد سن. تو نے جو یہ کہا کہ تو نے کہا تھا گوگل میٹ پر بات ہوگی, ایک آدمی تیرا ہوگا ایک آدمی میرا ہوگا, اور اس میں نے ٹاپک وسیلہ رکھا تھا. اللہ کی قسم اتنا بڑا تو جھوٹا ہے. اس وقت بھی ٹاپک ہمارا یہی تھا کہ گستاخ کون, اور اس میں تو نے یہ کہا تھا کہ ابن تیمیہ کو تو کافر مانے گا اگر میں نے اس کا کفر واضح کیا تو اس کے اوپر فتویٰ لگائے گا. تو نے حامی بھری, پھر میں نے تجھ سے لیٹر پیڈ کی بات کی تو وہاں سے بھاگا اور فون کاٹ کے بھاگا. تو اتنا بڑا جاہل جھوٹا ہے. یہ ریکارڈنگ سن اور اپنے منہ پہ کالک پوت کہ میں نے تجھ سے وسیلے کے ٹاپک پر تیرا کبھی چیلنج تو نے مجھے کیا اور میں نے ایکسیپٹ نہ کیا. ٹھیک ہے, میرا تو مس میچ نہیں ہوا نا, میرا تو سنیچ نہیں ہوا نا فون, میرے پاس تو پوری ڈیٹیل باقی ہے. چاہے تیری 1 منٹ کی ریکارڈنگ ہو یا 4 منٹ کی ریکارڈنگ ہو یا 10 منٹ کی ہو, میں نے ساری ڈالی ہے. تو اب تو نے جو دعویٰ کیا ہے نا, جھوٹا دعویٰ جو تو نے کیا ہے, تو اگر تیرا دعویٰ سچا ہے تو پہلے تو یہ بتا کہ تیرا فون اگر سنیچ ہو گیا, چوری بھی ہو گیا, تو نے اس کو فیس بک پہ تو ڈالا ہوگا, ٹیلی گرام پر تو سیو کیا ہوگا, یوٹیوب پر تو ڈالا ہوگا, وہی دے دے. لیکن تو نے ڈالا ہی نہیں, وہ بات ہے ہی نہیں, تو دے گا کہاں سے؟ اتنا بڑا تو جھوٹا ہے. ٹھیک ہے, اور مکاری فریبی تو تیرے اندر بھری پڑی ہے. سمجھ میں آئی بات؟ تو چل, اب تو نے جو کہا نا کہ تیری میری بات ہوئی تھی کہ ایک آدمی تیری طرف سے گوگل میٹ پر میں آ رہا ہوں, ایک آدمی تیری طرف سے, ایک آدمی میری طرف سے, اور میں نے ٹاپک وسیلہ لیا تھا, تو آنکھ کان سب کچھ کھول کھال کے دیکھ لے اور سن لے کہ میں نے اس وقت بھی ٹاپک یہی لیا تھا, گستاخ کون, مسلک اہل حدیث یا مسلک بریلویت. ٹھیک ہے, سن لے, ریکارڈنگ بھیج دی ہے میں نے, 26 منٹ کے بعد آگے کر کے سن لیو. اور تیرا دوست جو تجھے لے کر کے آیا تھا, اس نے بھی وہاں پہ جھوٹ بولا تھا کہ تو نے یوٹیوب پر لائیو آنے کی بات کی ہے, وہ وہاں پر بھی مکر گیا تھا. ٹھیک ہے, تو سامعین اکرام آپ نے سنا, اس نے اپنے منہ سے اوپر یہ کہا کہ تو نے گوگل میٹ پہ آنے کی بات کی تھی, اور یہ کہا تھا ایک آدمی تیری طرف سے ایک آدمی میری طرف سے, اور تو نے جو ہے مناظرے کا چیلنج کیا تھا. تو میں نے وائس میں کہا
वो भी आपने सुना। अब देखें जो बात इसके मेरे दरमियान हुई थी, ये तो झूठ बोल रहा है कि इसका फोन स्नैच हो गया और वो हवाले कहीं इसके पास, वो ऑडियो इसके पास मौजूद नहीं है। ऐसा तो हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि अगर हमारे पास कोई भी ऑडियो होती है तो या तो हम उसको फेसबुक पे डाल चुके होते हैं, या तो हम उसको टेलीग्राम पर सेव करके रखते हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन यहाँ पर ये झूठ बोल रहा है क्योंकि ये फंसा हुआ है। क्योंकि हमारी जब बात हुई थी, वो रिकॉर्डिंग मैं आपको सुना रहा हूँ, सुन लीजिए। इसका एक चेला लेकर के आया था इसको, और इसके चेले ने कहा था कि मोहम्मद रजा यूट्यूब पर लाइव बैठने के लिए तैयार हो गया। लेकिन जब इसको हमने लाइन पे लिया तो इसका चेला और ये दोनों झूठ बोल रहे थे वहां पे। लेकिन उसके बाद मैं गूगल मीट पर तैयार हुआ जाने के लिए, मैंने शर्त रखी, एक आदमी तेरी तरफ से, एक आदमी मेरी तरफ से। तो फिर देखिए कि वसील हमारा टॉपिक क्या वहां पे चुना गया, और वहां पे टॉपिक मौजू क्या हुआ और क्या शराइत रखी, वो भी आप सुन लीजिए। और कैसे ये फोन काट के भागा, वो रिकॉर्डिंग में पूरी आपको सुना देता हूँ इसी की जुबानी। जो इसने कहा कि तेरी मेरी जब बात हुई थी लाइव बैठने की, तो तूने ये कहा था एक आदमी तेरी तरफ से, एक आदमी मेरी तरफ से। अब इसका झूठ देखिए यहाँ से वाजे हो जाएगा। मैं आपको वो रिकॉर्डिंग सुना रहा हूँ, उसको समात और बगौर सुनिए कि हमारा टॉपिक क्या चुना गया था, और ये क्या कहते हैं, तहरीर मांगने के बाद कैसे फोन काट के ये भागा था। ठीक है, अब सुनिए आप इसको। या तुम झूठे हो या वो झूठा है। तुम अपनी शब्द मेरे मुंह में काहे डाल रहे हो यार? तुम्हारे मुंह में क्यों नहीं डालू, तुमने अभी यहाँ बोला है ना। मैंने कहा थी, मैंने उससे बात कर ली। देखो अभी तो देखो 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 जमशेद भाई कैसे भाग रहा है। अभी क्या बोला इसने? हेलो हेलो, जमशेद अली कादरी तुझसे देख, मैं कह रहा हूँ तू या मेरे सामने बैठ के बात कर या गूगल मीट पे बात कर। अब तो मैं गूगल मीट पे भी राजी हूँ तुझसे, चल आ तू सामने आ। लेकिन एक चीज ध्यान रखियो, तू अकेला होगा और मैं अकेला हूँ, बीच में कोई नहीं होगा। तो रिकॉर्ड कौन तेरा अब्बा करेगा? नहीं, रिकॉर्ड करने की क्या जरूरत है, मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग करूंगा, तू भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करियो। स्क्रीन रिकॉर्डिंग करियो ना, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करियो। तीसरा बंदे को चल एक काम कर, तो एक काम कर, एक काम कर, एक बंदा तेरी तरफ से, एक बंदा मेरी तरफ से, चौथा कोई नहीं होगा, दुरुस्त है, तीसरा कोई नहीं होगा। बिल्कुल दुरुस्त है। और अगर कोई तीसरा हुआ तेरी शिकस्त मानी जाएगी। तू भेज देना। लेकिन अभी इस बंदे ने तेरे मुंह पे बोला, मेरे मुंह पे बोला, इस बंदे ने अभी मुंह पे बोला कि मोहम्मद रजा ने अभी यूट्यूब पर लाइव आने के लिए हामी भर ली, और अब ये झूठ बोल रहा है। अभी इसने मुंह पे बोला मेरे, अभी उससे तेरे जो साथी है लाइन पर है वो गूगल मीट के लिए वो। अबे जाहिल आदमी, तुम लोग कभी जिंदगी में नहीं। तू दिल्ली में है मोहम्मद रजा, गूगल मीट से भागे। मेरी बात सुनो। हेलो भाई। अरे हाँ मोहम्मद रजा भाई। हाँ मोहम्मद रजा भाई, ये भाई साहब अकरम को बताया था ना। अभी क्या बोला था इसने कि यूट्यूब पर आने के लिए राजी हो गया वो। अभी ये दोनों झूठ बोल रहे हैं, दोनों झूठ बोल रहे हैं। हाँ बोलिए। जी हमसे उनसे बात हुई है, तो वो तैयार हैं आपके मुनाजरे के लिए। ठीक है बहरहाल, ठीक है। एक मिनट, मुनाजरे के लिए तैयार है? कहाँ, सामने बैठने के लिए या यूट्यूब पर लाइव? यूट्यूब लाइव। चुप रहोगे मेरे भाई थोड़ा? अबे चुप, मैं तेरा भाई नहीं हूँ, झूठे मक्कार कहीं के, झूठे कहीं के। अभी तूने क्या बोला यहाँ पे कि वो राजी है यूट्यूब पर आने के लिए? हाँ भाई, आपने यूट्यूब के लिए राजी बोला था। हाँ तो ये झूठा है फिर। फोन करिए आप इंशाल्लाह। अरे अबे सुन मोहम्मद रजा, सुन, तू कसम खुदा की दिल्ली में मुझसे एक बार मिल ले, एक बार तू दिल्ली से मिल ले मुझसे। हाँ मैं भाग नहीं रहा हूँ, मैं नहीं भाग रहा हूँ, मैं नहीं भाग रहा हूँ। गूगल म्यूट पर तू अकेला होगा, मैं अकेला होऊंगा। गूगल म्यूट पर तेरे साथ एक आदमी होगा, मेरे साथ एक आदमी होगा। दुरुस्त है। हाँ ठीक है, टाइम में तुझे मौजू है गुस्ताख कौन, नबी का गुस्ताख कौन, अहले हदीस या बरेलवी। और सुन, अपना मनहज बताएगा, माखज बताएगा, ठीक है, अपनी मसलक की जमात बताएगा। और सुन, जिसकी किताब में नबी की गुस्ताख, अबे तेरी जमात, तेरी जमात मसलक की अबे तेरा मसलक में अकाबिर कौन है तेरे? तेरे मसलक के अकाबिर कौन है? तेरे मसलक के अकाबिर कौन है? तेरे मसलक की जो जमात होगी, सुन बे, ए चुप चुप चुप, तेरे मसलक के आलिम कौन है? तेरे मसलक के आलिम कौन है? आलिम, तेरे मसलक के आलिम कौन है? तेरे मसलक के आलिम कौन है? देख रहे हो भाई कैसे भाग रहा है ये? देख रहे हो ना, देख रहे हो ना कैसे भाग रहा है ये? देखो 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 कैसे भाग रहा है, देखो। तेरे मसलक की जमात के आलिम कौन कौन है? ए मोहम्मद रजा, मोहम्मद रजा सुन, तेरे मसलक की जमात के आलिम कौन कौन है आज की तारीख में? अब तू सही बोला ना। जब हाँ तो तू बहरा है ना, तू सुन नहीं रहा पूरी बात। नाम बता उनके, नाम बता उनके, नाम बता।
नाम बता, नाम बता। इमाम इब्ने तैमिया ठीक है, अगर इमाम इब्ने तैमिया की किताब से नबी की गुस्ताखी या अल्लाह की गुस्ताखी मिली तो तुझे उनके ऊपर कुफर का फतवा देना होगा। नहीं, जो गुस्ताखी उनसे होगी वो हाँ, अब यहाँ पे हामी भर के जा, इसने अपने मुंह से बोला, जमशेद भाई इसने अपने मुंह से बोला कि इमाम इब्ने तैमिया इसके मसलक के इमाम है, और जब हम इससे बात कर रहे थे तो इसने बोला मैं इमाम इब्ने तैमिया को जानता ही नहीं। अगर इमाम इब्ने तैमिया से जो भी चीज सरजद होगी उस सरजद पे हुक्म लगाऊंगा, लगाएगा। सरजद है बिदत का, बिदत कुफर है तो कुफर का। हाँ, तो कुफर का फतवा जब लगाएगा, सुन 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 सुन, अगर इमाम इब्ने तैमिया के पे तूने कुफर का फतवा लगा दिया तो उसको काफिर मानना पड़ेगा जिंदगी भर के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, देख लो हामी भर रहा है जमशेद भाई, ये जमशेद भाई हामी भर रहा है ये, ठीक है ना। हाँ, कुफर साबित करना होगा। चल सुन, अगर सिद्दीक हसन भोपाली से मिला, सुन मैं इधर सुन, सिद्दीक हसन भोपाली से मिला या नसीर हुसैन दहलवी से मिला या तेरे आज के जर्जिस से मिला, तौसीफुर रहमान से मिला, सबके ऊपर तुझे हुक्म जारी करना पड़ेगा। बिल्कुल, ठीक है, आप और पूरी बात मेरी सुन ले, पूरी बात पहले मेरी भी सुन ले, अब सुन लेना। पहले मेरी पूरी बात तो सुन ले, पहले मेरी पूरी बात तो सुन ले। इमाम इब्ने तैमिया पर जिसने जिसने जरा की है उन सबके नाम मैं पेश करूंगा, उनकी किताब पेश करूंगा, उनके हवाले पेश करूंगा, मेरी जिम्मेदारी है। बिल्कुल, अब सुन ले। और इमाम इब्ने तैमिया को जिसने जिसने काफिर माना है उनकी किताब भी मैं पेश करूंगा। ठीक है, बात ही नहीं सुनते, हाँ चलो बोलो। जाहिल ऐसे ही होते हैं। इमाम इब्ने तैमिया रहीमहुल्लाह, अगर तूने उनका कुफ्र साबित ना कर सका तो तू अपना काफिर मानेगा। चल अब सुन ले, इमाम इब्ने तैमिया को जिसने काफिर माना है, सुन सुन, इमाम इब्ने तैमिया को जिसने काफिर माना है मैं उसका हवाला पेश करूंगा, और अगर तूने कुफ्र का फतवा ना लगाया तो तू भी काफिर। हाँ, अब दूसरी बात, हाँ, अगर पहले हामी भर, पहले हामी भर। हाँ बिल्कुल दुरुस्त, हाँ ठीक है, बिल्कुल हाँ, ठीक है, ठीक है, अब ठीक। दूसरा हाल ही तू भरेगा। हाँ, अगर इमाम इब्ने तैमिया तेरी नजर में अभी क्या है इस वक्त? काफिर है। काफिर है, ठीक है। और जो काफिर के कुफ्र में शक करे वो तेरे नजदीक क्या है? अगर कोई काफिर के कुफ्र में शक करे या इमाम इब्ने तैमिया को जिसने मोमिन माना है मेरी नजर में वो भी काफिर है। चलो ठीक है, ठीक है, अब सुन, अब तेरी बात, हाँ अब तेरी बात, को जिसने भी मोमिन माना है तेरी नजर में काफिर है। हाँ अब मेरी बात सुन, इमाम इब्ने तैमिया का जब कुफ्र साबित हो गया और आज की तारीख में या तेरे मसलक में जिसने जिसने इमाम इब्ने तैमिया को काफिर ना माना तो तू उसके ऊपर भी हुक्म लगाएगा। हाँ, लेकिन तूने खुद पहले क्या बोला मैंने क्या बोला, पहले तू हामी तो भर, मैं तो हामी भर रहा हूँ, तू हामी क्यों नहीं भर रहा है? जमशेद भाई देखो, हामी नहीं भर रहा है। अगर इमाम इब्ने तैमिया को कुफ्र साबित हो गया और आज की तारीख में जितने तेरे मौलवी मौलाना हैं, तेरे मसलक के इमाम जिसने अभी यूनिवर्सिटी बिहार में बनाई है, जो यूनिवर्सिटी और इब्ने तैमिया और इब्ने तैमिया के नाम से मदरसा बनाया है, उन सबको तुझे काफिर बोलना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल दुरुस्त है तेरी बात। बोलेगा 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 ना? बिल्कुल काफिर होगा। चलो अब अपने मसलक से लेटर पैड जारी करके दे दे कि तेरी शिकस्त पूरे अहले हदीस की शिकस्त है, और मैं अपने मसलक से लेटर पैड जारी करके देता हूँ मेरी शिकस्त पूरे मेरी बरेलवियत के मसलक की शिकस्त है। चल कब देगा लेटर पैड? लेटर पैड कब देगा? लेटर पैड की बात कर, जमशेद भाई से लेटर पैड की बात करो, लेटर पैड की बात कर, भाई मेरी बात सुन लो, लेटर पैड की बात कर। तेरे मसलक से लेटर पैड चाहिए, वो भी मोतबर लेटर पैड, और मैं उस्ताद ज़मन बरेली शरीफ दरगाह से लेटर पैड लेके आऊंगा कि मेरी शिकस्त पूरी बरेलवियत की शिकस्त होगी, और तू मसलक अहले हदीस जो तू दिल्ली में है मरकज से लेटर पैड ला के देगा तेरी शिकस्त पूरे अहले हदीस की शिकस्त। देख लो भाई, देखो अब देखो कैसे भाग रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि इसके इदारे में इसकी कोई वैल्यू नहीं है। अरे तो तू मुनाजरा कर रहा है ना, मुनाजरे पे तो लेटर पैड चाहूंगा ना, मैं भी तो दे रहा हूँ, मैं भी तो दे रहा हूँ। हाँ तो मैं भी दे रहा हूँ ना लेटर पैड मैं भी दे रहा हूँ ना। देखो ये इसकी औकात है, इसके मसलक वाले इसको कभी नहीं, क्योंकि इसके मसलक वालों ने खुद इसके ऊपर फतवे लगाए हुए हैं जो अभी तक फतवा जारी नहीं कर पाए, हटा नहीं पाया वहां से। मैं कह रहा हूँ मैं लेटर पैड जारी करूंगा कि जमशेद अली कादरी की शिकस्त इस मौजू पर अगर हुई तो पूरी बरेलवियत की शिकस्त होगी। और अगर ये लेटर पैड जब देगा, देखो फोन काट के भाग गया, अकेले में बात करेंगे, फोन काट के भाग गया वो भाई फोन काट के भाग गया वो। एक बार वो लेटर वाली बात सुन लो, बात भी कर सुनो रजा भाई, मेरी आप बात करेंगे या हम? हाँ सुन तो लो, अरे फोन काट के भाग गया वो, सुनो काट दिया फोन, वो फोन काट के इसलिए भाग गया क्योंकि उसके मसलक से उसको लेटर पैड मिलेगा ही नहीं, क्योंकि उसके मसलक के लोगों ने उसके ऊपर फतवे लगा रखे हैं जी। गूगल मीट पर माल मिलता है, उसको पैसा मिलता है, पैसा खोरी का फतवा लगा हुआ उसके ऊपर। सुनो
जमशेद अली कादरी लेटर पैड जारी करके देगा कि मेरी शिकस्त पूरी बरेलवियत की शिकस्त है, मैं इसको गूगल मीट पर जो इसने शर्त लगाई है मैं जाने के लिए तैयार हूँ, और ये मुझे अपने मसलक से फतवा लाके देगा लेटर पैड पे कि उसकी शिकस्त पूरी अहले हदीस की शिकस्त होगी जो ये फोन काट के भाग गया। जी तो मैं कहता हूँ वहाबी की किसी माँ ने हलाली बच्चा पैदा ही नहीं किया जो बात कर ले आके, उसूल से, उसूल इसी ने बनाया ना। जी जी मैं तो अब तो गूगल मीट पे भी जाने के लिए तैयार हो गया, जी ठीक है। और इस बंदे ने अभी झूठ बोला कि मोहम्मद रजा ने यूट्यूब पर लाइव आने का वादा किया है, जी 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 बिल्कुल ठीक है ना। बोला था, ये भी तो सुने अब हैं। ये बताइए इनका मसलक ही झूठ पर टिका हुआ है। और मैंने इससे ये पूछा था कि तेरे मसलक की जमात में आज के आलिम कौन कौन है, इसने अपने मुंह से बोला इब्ने तैमिया, बोला कि नहीं बोला। और इब्ने तैमिया को 70 मुहद्दिसीन ने कुफ्र के फतवे लगाए हुए हैं, जी 70 मुहद्दिस को मालूम है कि मैं किताबें पेश करूंगा तो इसकी हालत खराब होगी, इसलिए भाग गया फोन काट के। जी जी अब बताइए किसकी गलती है और कौन हक पर है और कौन ना हक पर है बताइए। है ना इनकी औकात। अलकम जो है उसको एक बार बोल दे कि लेटर पैड अगर जारी करवा लो तब उसके बाद आगे बात करो। अब आप बोलो ना, आप उसको ये बोलो कि जी। जमशेद भाई ने जो तुम्हारा मुनाजरा एक्सेप्ट किया है तो लेटर पैड जारी करवाओ मोतबर इदारे दिल्ली से, जी ठीक है। दिल्ली में जो मसलक अहले हदीस का इदारा है पुरानी दिल्ली, दिल्ली 6 में, ठीक है, वहां से। जी और जमशेद अली कादरी अपने बरेली शरीफ मरकज से लेटर पैड लेके आता है। जी तो चैलेंज तुमने किया है गूगल मीट पे आने का, तो सबसे पहले फतवा तुम लेके आओगे लेटर पैड। जी मैंने जी। तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट किया है तो तुम्हारा फतवा दिखूंगा किस मुफ्ती ने लिखा है, कौन से इदारे का लिखा है, तो फिर मैं लाके दूंगा। और जब तक मैं ना दूं जी तब तक मुनाजरा नहीं होगा, ठीक है। और अगर मैं ना दे सका, सुनिए, अगर मैं ना दे सका तो अल्लाह तबारक व तआला जहन्नम के निचले तबके में मुझको डालेगा। जी आमीन बोल दीजिए। जी आमीन। इतनी बड़ी मैंने कसम खा ली। तो देखें सामीन इकराम, आपने ये पूरी 10 मिनट की जो रिकॉर्डिंग है इसको सुना, इसमें आपने सुना कि क्या मौजू तय हुआ था, गुस्ताख कौन, शराइत क्या तय हुए थे, ये भी आपने सुना। और जैसे ही हमने इससे तहरीर की डिमांड करी वैसे ही ये फोन काट के भाग गया, ठीक है। अब देखें, अब इसका वॉइस आता है कि अब ये वॉइस में क्या कहता है। अब इस बात को ये नहीं छेड़ रहा है कि हमारा जो तय हुआ था, ये इस बात को नहीं छेड़ रहा है, बल्कि अब ये ऐसा उसूल पेश कर रहा है कि ऐसा उसूल पेश कर रहा है कि हर कोई हंसे इसकी इस उसूल पर, जो भी बहसो मुबाहिसा करता है ना वो भी हंसे। अब सुनिए, आप इसका उसूल सुनिए। देखें भाई, ये रिकॉर्डिंग हमारी भेज दीजिए। मुनाजरा वसीला के मौजू पर होगा। जमशेद अली कादरी अपने अदिल्ला शरई पेश करेगा। जो भी ये अमल करता है उस अमल की दलील इसको अदिल्ला शरई के मुताबिक देनी होगी। यानी मैं जो इससे मुनाजरा करूंगा वो इस चीज पर नहीं करूंगा मुतलक वसीला, बल्कि मैं मुख्तस वसीला पर करूंगा कि जनाब रसूलुल्लाह का वसीला लेना आपके नजदीक क्या नोयत है, इसकी क्या हैसियत है। यानी इसको आप फर्ज मानते हैं, वाजिब मानते हैं, सुन्नत मानते हैं, मुबाह मानते हैं, मुस्तहब मानते हैं, मुस्तहसन मानते हैं, ये वजाहत इसको करनी होगी और अदिल्ला शरई बताना होगा और अपना मुकम्मल दावा पेश करना होगा। और ये अभी से जो रोना शुरू कर दिया कि तेरे अकाबिर से दिखाऊंगा, तो तू जो है लाचार हो गया, तू मोहताज हो गया। तू तस्लीम कर लेना कि मेरे पास ना कुरान है, मेरे पास ना हदीस है, मेरे पास ना सहाबा है, कोई भी मेरे साथ नहीं है। मुझे अपने वसीले को साबित करने के लिए मोहम्मद रजा के अकाबिर की जूतियां मिली थी, उसको सीधी करने से ही साबित होगा। उससे कह दो मुनाजरा करे। और शर्त क्या है, जूम पर मुनाजरा होगा, जूम मीटिंग पे, वहाँ रिकॉर्डिंग होगी, 2 इसके बंदे 2 मेरे बंदे। और ये 1 हफ्ते पहले पोस्टर जो है पूरी मतलब इंडिया में शाया किया जाएगा कि आज के दिन मुनाजरा होना जमशेद से, रिकॉर्डिंग इंतजाम किया जाएगा, यूट्यूब पे डाली जाएगी, खियानत नहीं की जाएगी, दोनों तरफ से रिकॉर्डिंग होगी, ठीक। अच्छा, आप इसकी रिकॉर्डिंग सुनना पसंद करेंगे। ये बंदा कहता है कि इमाम बुखारी ताबई हैं, कभी कहता है इब्न हजर ताबई हैं, कभी कहता है इमाम शाफी ताबई हैं। इसकी इल्म लियाकत सुनाऊं आपको, आज से 3 साल पहले बात किया था। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरे सलाम का जवाब वफादार रसूल ने। सबसे पहले आपने इसकी जहालत को देख लिया, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। ये रिकॉर्डिंग किसी को भी सुनाएंगे वो हंसेगा।
पहली बात तो ये है कि टॉपिक ये चुन रहा है और दावा मुझसे मांग रहा है। कितना बड़ा ये जाहिल है। दावा इसका है कि वसीला लेना इसके नज़दीक जायज़ है, नाजायज़ है, हराम है, मकरूह है, मुस्तहब नहीं है, क्या है। दावा इसको करना है क्योंकि टॉपिक इसने चुना है और दावा मुझसे मांग रहा है। दूसरी बात यह है कि ये कह रहा है कि मेरे अकाबिर से दिखाएगा, और जब मैं तेरे अकाबिर से दिखाऊंगा तो तुझे उस पर हुक्म लगाना पड़ेगा, यानी इसके अकाबिर की मैं जूतियाँ सीधी करूंगा। ला हौल वला कुव्वत। पहली बात तो ये है, जनाब मन आग लगी घर के चिराग से। जब घर का एक बेटा नालायक निकल जाए तो बाप उसको लात मार के बाहर कर देता है। इस जाहिल को यही नहीं पता। अब तेरे घर में तेरे आलिम वही काम कर रहे हैं जो मैं कर रहा हूँ, तो वही हुक्म शरे तुझे उनके ऊपर पहले लगाना होगा, ये शरायत में तय होगी। और ये कह रहा है कि दावा मैं करूंगा और दावे पे दलील मैं पेश करूंगा, जबकि मौजू ये चुन रहा है। कितना बड़ा ये जाहिल है। मैंने आपको वो रिकॉर्डिंग भेजी जिसमें इसने झूठ बोला, उसका पर्दाफाश किया मैंने। इसने कहा था कि कुछ दिन पहले तेरी मेरी बात हुई थी, तूने टॉपिक वसीला चुना था, जबकि मैंने आपको रिकॉर्डिंग भेज दी यूट्यूब की कि उस वक्त भी मौजू यही था, गुस्ताख कौन, और इस पर इसने हामी भरी थी और इसने अपने मुंह से कहा था कि इब्ने तैमिया मेरा आलिम है। अब बताइए कौन जाहिल है। दूसरी बात ये कह रहा है कि इमाम बुखारी को मैंने ताबई कहा था। अबे इमाम बुखारी को ताबई तेरे अकाबिर ने लिखा है, मैंने कहा था तेरे अकाबिर से पेश करूंगा और तू भागा था। मैंने कहा था इमाम बुखारी ताबई के ताबई हैं। तो कितना बड़ा जाहिल है। अच्छा, तेरी इल्मी लियाकत बताता हूँ। अभी तूने अमन भाई से बात करते हुए ये कहा कि अत्तहियात के अंदर हुजूर का नाम नहीं है, तो कितना बड़ा जाहिल है। ठीक है, दूसरी जहालत तेरी दिखाता हूँ। तूने जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद के माबेन मुझसे गुफ्तगू की थी, उसमें तूने ये कहा कि जमशेद तू कुरान के टक्कर में मुफस्सरीन को ला रहा है, तो कितना बड़ा जाहिल। और तू कितना बड़ा जाहिल था कि तू खुद इमाम तबरी को लेकर के आ रहा था और इमाम तबरी का खुलासा मैंने किया और तू भागा फोन काट के। तो कितना बड़ा जाहिल है रे। मैं तो समझ रहा था कि चल छोटा मोटा होगा, लेकिन तू तो पाएगा जाहिल है। अबे घामड़, शरायत के अंदर ये तय होगी कि जो हुक्म शरई जो मुझ पर तू लगाएगा वसीला लेने के ताल्लुक से, वही हुक्म शरई पहले तुझे अपने अकाबरीन पे लगाना होगा, यानी अपने घर के अब्बाओं पे लगाना होगा। जब घर के बाप ही तेरे वसीला लेने के कायल है तो बेटा तू तो नालायक है, फिर तुझे तो धक्के दे के बाहर निकाल देंगे तेरे घर वाले। तो पहले तो तू अपने घर की खबर ले। जो काम तेरे घर में हो रहा है, तो तेरे अंदर अगर कुव्वत ताकत है तो तू पोस्टर शाया कर कि वसीला अगर मेरे अकाबिरीन ने लिया है और तो मैं उनके ऊपर हुक्म शरई वही लगाऊंगा जो मैं जमशेद पे लगाऊंगा। पहली बात। दूसरी बात यह है कि दावा तुझको पेश करना है। क्यों? क्योंकि इजमा के नजदीक वसीला जायज है। मैं तो तेरे आगे जकीरा पेश करूंगा इजमा का। शरीयत के जो 4 उसूल हैं उसी उसूलों पे बात होगी। अब तू कितना बड़ा जाहिल है, अब ये मुझे बोलने की जरूरत तो है नहीं। ठीक, अब तू गूगल मीट से भाग करके चला गया जूम पर। देखो सामिल इकराम, पहले आया था ये यूट्यूब पे लाइव आने के लिए, वहां से ये भागा। ठीक, फिर ये आया दिल्ली में सामने बैठने के लिए 5 तारीख को, वहां से भागा। फिर ये कहा कि गोंडा में बैठूंगा, वहां से भागा। अब ये आया गूगल मीट पे करूंगा, वहां से भागा। अब कह रहा जूम पे करूंगा। कहाँ कहाँ भागेगा वे तू। चल तेरी ये बात भी मुझे मंजूर है, लेकिन शरायत मुनाजरा जो तू तय करेगा ना पोस्टर में, तो पोस्टर तू शाया कर कि मैं वसीले के टॉपिक पे बात करूंगा, मेरा मनहज, मेरा माखज, ठीक, और मेरा मसलक ये है, और जो हुक्म शरई वसीले के टॉपिक पर मैं बात करूंगा, जो हुक्म शरई
जमशेद अली कादरी पे मैं लगाऊंगा। अगर किसी भी मुफस्सिरीन, मुहद्दिसीन या ताबई या तबे ताबई या मेरे घर के अकाबिर से वो साबित कर दे कि उन्होंने वसीला तलब किया हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, बुजुर्गान दीन का, तो मैं वही हुक्म शरी उनके ऊपर भी लगाऊंगा। ये पोस्टर शाया करके मुझे भेज दे, जैसे ही तेरा पोस्टर आएगा फिर मेरा पोस्टर आ जाएगा, क्योंकि मौजू तूने चुना है, तेरा चैलेंज मैंने एक्सेप्ट किया है। तो जो चैलेंज करेगा पहले पोस्टर तुझे शाया करना है, और दावा भी तू पेश करेगा, और दावे पर हुक्म भी अपने अकाबिरीन पे तुझे लगाना होगा। तो तू बहुत पड़ा पाएगा जाहिल। मुझे तो अभी से हंसी आ रही है, अभी तो इब्तिदाई इसका बेटर होता है कि आगे आगे देख तेरे साथ होता है क्या। तो सामीन इकराम, आपने सुनी इसकी जहालत को कि ये कहता है कि वसीले पर ये दावा पेश करे, जबकि टॉपिक ये चुन रहा है, मैं नहीं चुन रहा हूं। ठीक है, चलो हमने इसको भी एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है ना। अब उसके बाद हुआ क्या कि जब हमने सारी वीडियो जो हमारी यूट्यूब पर पड़ी, इसके चेले को भेजा, इसके चेले ने जब इसको भेजा कि भाई तुम इतने बड़े बड़े झूठ बोल चुके हो। अब देखिए, मैं एक रिकॉर्डिंग और आपको सुना रहा हूँ। इसने हमारे सहरीन भाई से बात की और इसने ये कहा कि अल्लाह की कसम तू हमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम अत्तहियात में दिखा दे। इसने इतना बड़ा झूठ बोला, और इतना बड़ा झूठ बोल के ये गूगल मीट पे ही मुनाजरा कर रहा था और बड़बड़ करके भाग गया ये। तो मैं आपको वो रिकॉर्डिंग भी सुनाना चाहूंगा जिस पर इसने इतना बड़ा झूठ बोला कि अत्तहियात में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम ही नहीं है, माअज़ल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। इतना बड़ा ये जाहिल है। अब आपको मैं वो रिकॉर्डिंग सुनाने लगा हूँ, इसको जरा गौर से सुने, उसके बाद ये तिलमिला करके क्या हुआ आगे वो मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले आप ये रिकॉर्डिंग को पूरा सुने जिसमें इसने इतना बड़ा झूठ बोला कि अत्तहियात के अंदर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम है ही नहीं। इसने कहा है कि तुम्हारा अमल है इस चीज के ऊपर कि रफ़ा सबाबा आप करते हैं। रफ़ा सबाबा के ऊपर बताया ना तूने मौजू पूरा मुकम्मल मैं कर रहा हूँ। मैंने वो भी बता। अब तू अभी से शुरू कर दिया, अभी से हगना शुरू कर दिया। अधूरी बात करेगा तो मैं बीच में अभी से क्यों हग रहा है? मुकम्मल करने देना, भी दावा पेश ही नहीं किया, अधूरी कर जाहिल कहीं का। मैं अपना दावा खुद पेश करूंगा ना। मैं से ये जानना चाहता हूँ कि इन्होंने कहा है कि तुम्हारा रफ़ा सबाबा पर अमल है तो तुम इसके दावेदार हो। मैं पूछता हूँ, पहले तो मैं ये ले लूँ ना कि आप रफ़ा सबाबा के कायल हैं या नहीं। अगर मुतलक इनकारी है तो मैं बिल्कुल पेश करने के लिए तैयार हूँ अपना दावा। अगर ये कहीं पर रफ़ा सबाबा करते हैं तो वो वजाहत कर दें मुझको, ताकि मैं फिर अपना मुतलक दावा पेश करूँ। क्या आप मुतलक रफ़ा सबाबा का इनकार करते हैं? हो गया तेरा? हाँ बताइए। बेबरकत बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा ला तुसल्लित अलैना मन ला यरहमुना रब्बि ज़िदनी इल्मा। दोस्तों, सबसे पहली बात मैंने कहा था ना, इसके बस की बात ही नहीं है। मैंने कहा इसे टोका क्यों था? मैंने बीच में टोका था इसलिए से कि मुकम्मल तो बात करेंगा, अधूरी बात नहीं करेंगा। मैंने क्या कहा था? मैंने ये भी कहा था कि तशहुद में जो तुम लोग उंगली को हरकत देते हो, ठीक है, वो तो हम भी करते हैं, लेकिन हम उंगली को हरकत देने के कायल नहीं है। हम सिर्फ एक बार उंगली उठा देते हैं और ला इलाहा इल्लल्लाह पर गिरा देते। ला इलाहा इल्लल्लाह पर उंगली उठाते हैं हम, और नबी अलैहिस्सलाम के इसमें मुबारक पर उंगली हम गिरा देते हैं। तो हमारा तशहुद में हमारा ये अमल होता है। लेकिन तुम लोग तशहुद में जो उंगली को बार बार हरकत देते हो, तो इस पर तुम्हारा अमल है और इस मामले में मुद्दई तुम है। और अल्लामा जुर्जानी रहमतुल्लाह ताला ने शरह मुनाज़रे के रशीदिया मतन के पेज नंबर 48 से खुद लिखा है कि मुद्दई के जिम्मे दलील होती है जिस पर वो अमल पैरा होता है। तो लिहाजा इस पर तेरा अमल है। तुम लोग तशहुद में उंगली को हरकत देते तो हम इसकी उंगली को हरकत नहीं देते। जिस तरह से हम मिलाद करते हैं तो तुम लोग हमें फोन कर बोलते हो कि ये मिलाद कहाँ से साबित है, इसकी दलील दो। उसी तरह से अब तुम्हारा इस पर अमल है कि तुम लोग तशहुद में उंगली को हरकत देते हो। तो कब से हरकत देते हो? वो हरकत देना शुरू स्टार्टिंग में कहाँ से शुरू होता है? जिस तरह से हम तशहुद में जब हम बैठते हैं अत्तहियात में तो हम उंगली कब उठाते हैं, इसकी भी दलील देंगे। किस लफ्ज़ पर उंगली उठाते हैं हम ये भी बताएंगे। उसी तरह से तुम उंगली को जो हरकत देते हो तो स्टार्ट कब करते हो? 1 मिनट हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। तो सामईन, आपने सुना इनकी जहालत। कहते हैं कि अशहदु अल्लाह
अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पर उंगली उठाते हैं और मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पर उंगली गिराते हैं। रब्बे काबा की कसम अत्तहियात के अंदर रसूलुल्लाह का नाम आता ही नहीं है। रब्बे काबा की कसम अत्तहियात के अंदर रसूलुल्लाह का नाम आता ही नहीं गिराते हैं। रब्बे काबा की कसम अत्तहियात के अंदर रसूलुल्लाह का नाम आता ही नहीं है। रब्बे काबा की कसम अत्तहियात के अंदर रसूलुल्लाह का नाम आता ही नहीं है। अब्दुहु व रसूलुहु का लफ्ज है और कहता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर उंगली गिराते हैं। झूठा, इसे अत्तहियात तक नहीं आता, आपने सुन लिया, कहता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर उंगली को गिराते हैं। हालांकि अत्तहियात में कहीं भी रसूलुल्लाह का नाम नहीं आता, यानी ये जाहिल है, इसको अत्तहियात तक नहीं आया, अभी नमाज मुकम्मल नहीं है इसकी, और ये मुनाजरा करने के लिए आ जाए। तो सुना आप लोगों ने भाइयों, ये इतना बड़ा दावा कर रहा है और अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला की कसम उठाकर कह रहा है कि अत्तहियात में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक ही नहीं आता। इतना बड़ा इसने दावा कर दिया, इतना बड़ा इसने झूठ बोला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अब सामने ग्राम आपने सुन लिया कितना बड़ा ये जाहिल है। अगर ये 2-4 साल और वहाबियों का मुनाजिर बन के रहा ना तो ये वहाबियों को इतना बदनाम कर देगा कि किसी की जरूरत ही नहीं रहेगी। इसने रब्बे काबा की कसम यानी अल्लाह तबारक व तआला की कसम खा के कहा अत्तहियात में सिर्फ अब्दुहु व रसूलु है, हुजूर का नाम ही नहीं है। कितना बड़ा ये जाहिल है, आप खुद देख लें। अब आप खुद फैसला करें किसके ऊपर तौबा लाजिम है या नहीं है। ठीक है, अब इसके जितने चेले चापड़ है ना वो फैसला करें, हम नहीं करेंगे। आगे चलें। अब उसके बाद जब हमने इसको ये सारी रिकॉर्डिंग वगैरह इसके चेले तक पहुंचा दी तो इसने तिलमिलाते हुए मेरे को फोन किया। अब देखिए, तिलमिलाते हुए इसने मुझे फोन किया, 15 मिनट इसकी मेरी गुफ्तगू हुई। अब ये फोन काट के देखिए कैसे भागा, ठीक है, और कैसे ये अपना पीछा छुड़ाया इसने इस मुनाजरे से जो गूगल मीट पर होने वाला था। और इसने अपने चेले को आखिरी में ये कह दिया कि भाई मुझे उसकी आवाज सुनना भी पसंद नहीं है, मैं उससे मुनाजरा नहीं करूंगा। ठीक है, कैसे इसने अपना पीछा छुड़ाया। तिलमिला के इसने मुझे फोन किया कि मैंने इसकी हकीकत चेलों तक पहुंचा दी कि इसने अत्तहियात पर झूठ बोला। इसके बीच में मेरे बीच में जो गूगल मीट पर मुनाजरा तय हुआ था उसमें मौजू था गुस्ताख कौन, उस पर इसने झूठ बोला था कि वसीला मौजू था, उस पर यह जलील व ख्वार हुआ। तो इसने मुझे तिलमिलाते हुए फोन किया और अपने दूसरे नंबर से कॉल किया क्योंकि इसके जो नंबर हमारे पास है वो इसने मुझे ब्लॉक कर रखा है। अब जैसे ही इसने मुझे फोन किया ये फोन काट के भागा। मैंने 4-5 कॉलें लगाई, इसने मेरा फोन ब्लैक लिस्ट में डाल दिया, ब्लॉक कर दिया। तो अब सुने देखिए कैसे ये तिलमिला करके इसने फोन किया और किसने तिलमिला करके ये भागा फोन काट के, और क्यों भागा वो भी आप समाअत फरमाएं। जी, आपने नंबर दिया था ना इंस्टाग्राम पर बात करने के लिए। अच्छा, वो कश्मीर से बोल रहे हैं आप आलिम साहब? आप कौन बात कर रहे हैं? जी, मैं जमशेद अली कादरी बात कर रहा हूँ, इंडिया दिल्ली से। हाँ, तो मैं मोहम्मद रजा सल्फी बात कर रहा हूँ दिल्ली से। अच्छा, बोलिए। हाँ, तो भाई साहब आपने मुझे ये चैलेंज दिया था, हाँ। उस चैलेंज से आप राह फरारी इख्तियार क्यों कर रहे हैं हजरत? दुनिया वहाबियत में कोई साबित कर देगा मैंने राह फरार इख्तियार की है? तुमने मुझसे चलो, झूठ इतना क्या तो बोला? मान गए हो कि वहाबी जो है तुमने झूठ क्या बोला? सुनो, तुमने झूठ क्या बोला? बरेलवी में मौजूद है। आप बोलने नहीं देगा। तुमने क्या बोला कि तेरी मेरी बात हुई थी कुछ दिन पहले, उस वक्त भी वसीला टॉपिक था, वो वीडियो मैंने डाल दी। कान खोल के आँख खोल के देख ले और सुन ले। क्या तूने वजीर भाई के साथ ये तय नहीं किया था कि 2 तेरे होंगे 2 मेरे होंगे, रिकॉर्डिंग होगी गूगल मीट पर? वो मैंने डाल दी ना यूट्यूब पर, मौजू होगा, यूट्यूब वाली वीडियो मैंने डाल दी। सुन अब सुन ले, भागे मत। वो मैंने यूट्यूब पे डाल दी है, कर दी ना वो वीडियो मैंने उसके पर्सनल में भी डाल दी है। उसमें सुन ले कान खोल के, जिसमें वसीला टॉपिक पर मुझसे बात नहीं कर पाएगा, रो दे यहीं पे, रो ले। देख, पहली बात सुनो, मुझे बोलने दे फिर तू बोल लियो, ठीक है? मैं तुझे देख नहीं रहा हूँ रे, मुझे बोलने दे। रहा हूँ। हाँ, मुझे बोलने दे फिर बोल लियो, आराम से बोल लियो। कॉल पे ले ले, क्योंकि तू अकेला बात नहीं करता ना, एक आध को ले ले, दूसरों को सुना ले। हद है, तेरी ऐसी आदत थोड़ी है मेरी, क्योंकि कभी वजीर को ले लेगा, कभी किसी को ले लेगा। कॉल करता ही नहीं है मोहम्मद रसल की, अकेला बात 6 रिकॉर्डिंग डली हुई है अकेले की। तूने कितनी डाली अकेले की? जो है अकेला मेरे से बात किया ही नहीं। जब ये बौखलाहट का शिकार हो गया है, इसकी मेरी जो गुफ्तगू हुई है अकेले में 6 रिकॉर्डिंग इससे मेरी बात हुई है अकेले, जबकि ये खुद साथ में लेके आता है। कभी वजीर को ले लेगा, कभी किसी को ले लेगा। अब सुन, शराइत पे अभी बात कर लेते हैं, मुनाजरा कर लेंगे। अब सुन, पहली बात सुन ले। तूने ये कहा कि तेरी मेरी बात हुई थी कि एक टॉपिक उस टाइम वसीला था। मैंने वीडियो यूट्यूब पे डाली हुई है, वो मैंने वीडियो उसके पर्सनल पे लगा दी। उसमें क्या बात हो रही है सुन ले।
اس میں تو نے یہ کہا تھا کہ میرا عالم ابن تیمیہ ہے، پہلی بات. دوسری بات تو نے یہ کہا تھا کہ جو ٹاپک ہے، ٹاپک ہوگا گستاخ کون. میں نے کہا ٹاپک ہوگا گستاخ کون کو. تو نے بولا منظور ہے. تو وہاں سے فرار اختیار کر کے بھاگا. لائیو بات ہو رہی ہماری یوٹیوب پر بیٹھنے کی. اس کے بعد تو نے کہا چلو ٹھیک ہے ہم 5 تاریخ کو دہلی میں بیٹھیں گے. تو نے اور تیرے مہتاب نے، تم وہاں سے بھاگے. پھر تو نے کہا میں گونڈا میں بیٹھوں گا. اس کے بعد میں نے بولا کہ بھائی 4 تاریخ رات کو 8 بجے تحریر دی ہے، گونڈا کیسے پہنچیں گے؟ تو نے کہا میں 2 گھنٹے میں ایئرپورٹ پہ فلائٹ سے پہنچ جاؤں گا. میں نے بولا تیرے ابا نے فلائٹ ایئرپورٹ بنایا ہوا، تو وہاں سے بھاگا. پھر تو نے کہا میں گوگل میٹ پر آؤں گا. اب تو کہہ رہا میں زوم پر آؤں گا. ابے کہاں بھاگے گا تو ایک کام کرنا، دلی کا ایڈریس دینا، میں آتا ہوں تیرے پاس. تجھے اتنی کھجلی ہے، سن، تجھے اتنی کھجلی، تیری ساری کھجلی مٹاتا ہوں نا. ابھی تک تیرے مسلک اہل حدیث سے تیرے اوپر جو فتوے لگے ہیں وہ تو ہٹا نہیں پا رہا ہے. تجھے میں چیلنج کر رہا ہوں، آجا مرکز میں، آجا مرکز میں. تیری ہمت نہیں ہو رہی ہے اور تو مجھ پر الزام پہ الزام لگایا جا رہا ہے. اب بول تو. ہاں سامعین اکرام، آپ نے سنا، اس نے کم سے کم 2 منٹ کی ریکارڈنگ میں اتنے جھوٹ بولے ہیں، اس کو میں منتشر کر دوں. پہلا جھوٹ اس نے بولا ہے کہ میں نے یہ کہا تھا کہ گستاخ کون پر مناظرہ کروں گا. جھوٹا ہے. وسیلہ پر شروع سے بات ہوتی آ رہی تھی، وسیلہ والی ریکارڈنگ اس نے نہیں ڈالی ہوگی کیونکہ عوام کو خوش کر رہا ہے. دوسری بات، اس نے یہ کہا کہ کبھی کہتا زوم پہ، کبھی کہتا گوگل میٹ پہ. ارے تو جہاں بلا لے میں وہیں پہ آ جاؤں گا، کوئی سا بھی پلیٹ فارم ہو، چل زوم ہو یا گوگل میٹ ہو، کہیں پر بھی آ جا، میں آنے کے لیے تیار ہوں. تیسری اس نے یہ بات کہی کہ تیری جماعت نے اس پر فتویٰ لگایا ہے. جھوٹ ہے بھائی، کتنی بار اس کو منکشف کر دیا. مہتاب بھائی نے 5 ویڈیو ڈال دی اور ہماری تائید میں فتویٰ بھی نکلا کہ ایک فتویٰ جو یہ شائع ہو رہا ہے جمشید علی قادری نے جو بنایا تھا، اس فتویٰ شائع کو انہوں نے کہا کہ یہ ثابت نہیں ہے، کہ غیر ثابت ہے. تو یہ وہاں پر بھی ذلیل ہوا. اس فتوے کو بھی اس نے کوئی جواب نہیں دیا. اب میں نے اس کو چیلنج دیا تھا کہ بھائی موضوع وسیلہ پر تو مقروض ہے. آپ امت آرام سے بات کر. ابے جاہل مطلق میں چل رہا ہوں، کہاں پر رہا ہوں. اچھا ہو گئی تیری بات، ہو گئی. ابھی سن لینا تو کیوں رو رہا. اچھا بول. جاہل کہیں گے، تجھ سے کاپوں ابھی تیرے لفظ میں اتنے سدھار سکتا ہوں، بول بھی نہیں پائے گا. تو اس سے میں نے چیلنج دیا تھا. یہ بہت اڑ رہا ہے، کہہ رہا کہ بار بار دلی میں سامنے. ارے تیری اوقات نہیں ہے تو سامنے آ کے بھی بات کر لے. ابھی پہلے تو گوگل میٹ پہ ثابت ہوا دلیل. تو کہہ رہا کہ میں آیا تو گوگل میٹ پہ مجھے بولنے نہیں دیا. کیا تو طے کر کے آیا تھا مجھ سے؟ اگر تو طے کر کے آتا اور یہ کہتا کہ ہاں رضا میں طے کر کے آ رہا ہوں، اس وقت تجھے بولنے نہیں دیتے تو بات الگ ہے. تو طے کر کے آئے نہیں اور میں نے آج تک تجھے دیکھا ہی نہیں کہ تو کب آیا. اب میں اس سے کہہ رہا ہوں کہ تیرے اندر اتنی سی بھی غیرت ہے، تو اگر شرم باقی ہے تھوڑی سی بھی، تو موضوع پر مجھ سے مناظرہ کر لے جو میں منتخب کیا ہوں. اگر نہیں کر سکتا تو انشاءاللہ میں اس پر بھی تجھ سے مناظرہ کر لوں گا کہ گستاخ کون، اور پھر تیرا جو کچا چٹھا ہے نا جماعت کا وہ ننگا کر کے رکھوں گا انشاءاللہ. لیکن پہلے تو تسلیم کر لے کہ وسیلے پر رونا شروع کر دیا. اب سن لے سامنے لمبا مت کریو. اب تو نے 3 منٹ بولا تو میں بھی بولوں گا نا. خاموش ہو جا. تسلی رکھ، نہیں ہوتا رہے، تسلی رکھ. سامعین بول رہا ہوں، تسلی رکھ. تو سامعین اکرام، آپ نے یہ دیکھا کہ اس نے پہلے یہ بولا کہ مرکز کا جواب مہتاب نے دے دیا. اللہ کی قسم میں کھا کے کہتا ہوں کہ مرکز کا جواب تو چھوڑو، اس نے مجھے جھوٹ بول کے مرکز بلانے کی کوشش کی. جب میں وہاں گیا تو وہاں بارش سے پوری کیچڑ بھری ہوئی تھی، اور مہتاب جو ویڈیو بنا کے بھاگا ہے وہ 1 دن پہلے بنا کے بھاگا ہے. وہاں پہ اس کی نہ تو کوئی بارش کا نام و نشان ہے اور نہ ہی وہاں کیچڑ ہے. پہلا جھوٹ. دوسرا، میں نے ان کو یہ چیلنج کیا ہے کہ تم 10-15 آدمی مرکز میں پہلے سے پہنچ جاؤ، میں اکیلے تنہا پہنچوں گا. اور اگر تیرے مرکز والوں نے یہ کہہ دیا کہ یہ فتویٰ غلط ہے، ہم نے ہٹا دیا ہے، یا یہ غلط طریقے سے شائع کیا ہے اس نے، تو تم مجھے جوتے بنا دو، نہیں تو میں تمہیں جوتے بجاؤں گا. اس پر بھی یہ راضی نہیں ہوئے. تیسری بات یہ کہہ رہا ہے کہ تم مجھے جہاں بلا میں وہاں بیٹھنے کے لیے تیار ہوں. میں آج 1.5 سال سے اس کے پیچھے پڑا ہوں کہ دلی کا ایڈریس دے، میں تیرے سامنے بیٹھوں گا. یہ بھاگ رہا ہے. اب سامعین اکرام، میں نے 7 ریکارڈنگ اس کی یوٹیوب پر ڈالی ہے، وہ بھی پوری بنا کاٹ چھانٹ کیے. اس نے میری ایک ریکارڈنگ پوری بنا کاٹ چھانٹ کیے کہیں نہیں ڈالی ہے. میں چیلنج کرتا ہوں. اب اس نے جو لاسٹ ٹائم مجھ سے بات کی تھی تو ہماری لائیو یوٹیوب پر آنے کی بات ہوئی تھی، یہ وہاں سے بھی بھاگا. وہ بھی ریکارڈنگ میں نے ڈالی ہے. اس نے کہا ٹاپک ہوگا گستاخ کون. چلے، میں نے اس کو کہا چلو ٹھیک ہے بات کریں گے، لیکن یہ وہاں سے بھی بھاگا. اس کے بعد اس نے میرے نمبر بلیک لسٹ پہ ڈالے ہوئے ہیں اور یہ کسی دوسرے نمبر سے کال کر رہا. چلے بہر کا مجھے مطلب نہیں ہے. اب یہ آیا ہے سینہ چوڑا کر کے مجھ سے گفتگو کرنے کے لیے. الحمدللہ میں وسیلے پہ ہی تیار ہوں اس سے بات کرنے کے لیے، لیکن یہ پہلے طے تو کرے
ये कभी कहता है गूगल मीट पर, कभी कहता है यूट्यूब पर, कभी अब कह रहा है जूमिंग पर। मैं इससे कह रहा हूँ तू तहरीर निकाल, और तहरीर माँ हुक्म बा हुक्म के, रुक जा अभी, रुक जा, तहरीर निकाल, तहरीर निकाल, रुक जा, अबे झूठे मक्कार, रुक जा अभी, रुक जा, तहरीर निकाल, तहरीर निकाल, तहरीर ये शाया कर कि मैं टॉपिक वसीला चुनता हूँ, वसीले पे मेरा दावा ये है, मेरा मजहब ये है, मेरा माखज ये है, मेरा काबिर ये है, और मेरा हुक्म ये है वसीले पर, और हुक्म के मातहत मैं वही हुक्म लगाने के लिए तैयार हूँ कि जो हुक्म जमशेद अली कादरी पे लगाऊंगा। अगर जमशेद अली कादरी ने मेरे मसलक के अहले हदीस के अकाबिर से वही मौक़िफ़ साबित कर दिया, वही अकीदा साबित कर दिया, तो मैं उनके ऊपर भी वही हुक्म लगाने के लिए तैयार हूँ। और ये मैं अपने लेटर पैड पे भी सुन, मैं अपने तहरीर में भी यही लिख के दूंगा कि जो मौक़िफ़ मोहम्मद रजा का है, अगर वो मौक़िफ़ मेरे किसी अकाबिर से वो साबित कर देगा तो मैं वही मौक़िफ़ पे हुक्म अपने अकाबिर पे भी लगाने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि बात हो रही है मसलक की, बात हो रही है मसलक के अहले हदीस की, वही अहले हदीस जिसने तुझे अभी जूतों से मार के तेरे ऊपर तहरीर लगाई हुई है गुमराही की। चल ठीक है, अब बोल। देखिए, पहली बात इसने कितने झूठ बोले। कहता है कि मेहताब भाई आए थे वहाँ पर और एक दिन पहले, अरे बेवकूफ, वो बंदा बिहार से आ गया, इसमें इतनी गैरत नहीं थी कि वहाँ जाकर बात करे। वो इतनी दूर से दिल्ली में सिर्फ इसी वजह से आया कि इसने जो झूठ आवाम में फैलाया था इस मुशरिक पलीद ने कि भैया इसके खिलाफ फतवा शाया हुआ है मेहताब भाई और रजा के सामने ग्राम झूठ बोल रहा है, मेहताब शादी अटेंड करने आया था यहाँ पे, ये झूठ बोल रहा है, जाहिल कहीं के। सुन, और मेहताब की स्टेटमेंट खुद मौजूद है, उसने अपने मुंह से खुद बोला मैं तुझसे मुलाकात नहीं करूंगा, मैं तुझसे क्यों मिलूं। कबर पुजारी सुन, तेरे मेहताब की स्टेटमेंट खुद मौजूद है, झूठ बोलेगा मेरे सामने, झूठ बोलेगा, सुन ले, कबर पुजारी तो तू खुद है की नस्ल। सुन, इसने कहा कि वो जो है शादी अटेंड करना है, नाउजुबिल्ला। मैं उसके साथ 2 दिन तक रहा हूँ, वो बंदा बिहार से सिर्फ इसी काम के लिए आया था। सामने ग्राम देखिए अभी झूठ बोल रहा है, जगह नहीं, ये झूठ बोल रहा है सामने ग्राम। अरे सुन ले मेहताब का स्टेटमेंट खुद मौजूद है, मेरी बात उसने कहा मैं तुझसे क्यों मुलाकात करूँ, मैं तुझसे क्यों मुलाकात करूँ। पूरे दिन मुझे दिल्ली में वो घुमाता रहा, कभी होश खास, कभी मेहरोली, कभी जामा मस्जिद। 10 रुपए झूठ बोलेगा तू, झूठ बोल के फोन काटेगा कहीं के। कौन? मैं? अरे सुन ले मैं देख सुन, मैं 10,000 खर्च करने के लिए तैयार हूँ, तेरे एरिया में मुनाजरे के सारे इंतजाम करने के लिए तैयार हूँ, तो हामी तो भर। अबे सुन ले रे, इसने हामी तो भर, साले बदबूदार मुंह के झूठ बोलता है। मैंने इसको, अबे मेरे सामने झूठ बोलता है, मैं तो इतना मेरे सामने झूठ बोलता है तो निकाह करने को सोचा, तो फिर भागने के लिए तो भाग क्यों रहा है फिर? मैं 10,000 खर्च करने के लिए तैयार हूँ। झूठ क्यों बोल रहा है? सच बोल, नहीं हो रहा तो मुनाजरा झूठ क्यों बोल रहा है? सच बोल, झूठ मत बोल। तेरा मेहताब का स्टेटमेंट खुद मौजूद है, उसने खुद बोला मैं तुझसे क्यों मुलाकात करूँ, मैं क्यों मुलाकात करूँ तुझसे। इंतजार किया था जिस दिन तू आया ही नहीं, अल्लाह की कसम मैं वहाँ पहुंचा, वहाँ बारिश हुई थी और तू भागे हुए थे। वो वीडियो मैंने उसी टाइम बना के यूट्यूब पे डाल दी थी। मैंने तुझे ब्लॉक कर रखा है, 4 साल से मेरा ये नंबर चल रहा है, अब क्यों लग गई कॉल पे मुशरिक पलीद कहीं। देखिए सामने दिख रहा, मैं अभी दिखाता हूँ आपको, इसने ब्लॉक कर रखा है, नहीं अभी इसके फोन करते इसके नंबर दिखाता हूँ, अभी इसके नंबर दिखाता हूँ। मुशरिक कॉल, मैंने थोड़ी तुझे ब्लॉक कर रखा है, मैंने थोड़ी तुझे ब्लॉक कर रखा है, तूने मुझे ब्लॉक कर रखा है गधे। अल्लाह अकबर, देखो कितना बड़ा जाहिल मुशरिक। इसने ब्लॉक करके रखा है और मेरा नाम ले रहा, मैंने तो थोड़ी ब्लॉक करके रखा है। तूने कॉल की ना मुझे, तूने कॉल की ना मुझे, और क्या मैंने तुझे कॉल किया तो मैंने ब्लॉक को नहीं कर रखा ना, मैंने ब्लॉक नहीं कर रखा ना। अगर मैंने तुझे ब्लॉक कर रखा होता ना तो मैं तुझे कॉल नहीं करता, मुझे नहीं पता तुझे। चल मुनाजरे की बात कर, भाग मत, मुनाजरे की बात कर, भाग कर, मुनाजरे की बात कर, भाग मत, मुनाजरे की बात कर, कबर के पुजारी, कबर पुज्जे, क्या किसकी भाग मत, मुनाजरे की बात कर, मुनाजरे की बात कर, भाग मत। अबे मुनाजरे नहीं होता रे, मुनाजरा होता है। अबे हाँ मुनाजरा ही होता है, मुनाजरे की बात कर, चल भाग मत, मुनाजरा। अबे हाँ मुनाजरा, तू मुजरा कर रहे हैं यहाँ पे। अच्छा चल कबर मुनाजरा करेंगे, लेकिन मुनाजरा किसको कहते हैं बता रहे? मुनाजरे का मसदर क्या है? किस लिए फोन किया तूने मुझे? मुनाजरे का फोन किस लिए किया मुझे? तूने फोन किस लिए किया मुझे? तूने फोन अभी किस लिए किया मुझे? मेरे को दुनिया वहाबियत में किसी माँ ने हलाली बच्चा पैदा नहीं किया बेटा। करेगा कि वहाबियत में देखिए सामने इकराम, सामईन इकराम, अब आप देख ले कि जैसी मैंने शराइत की बात की ये भागा, क्योंकि ये शराइत नहीं तय कर सकता, मैं तो कह रहा हूँ ये शराइत तय ही नहीं कर सकता। आप देखिए बौखलाहट का शिकार हो गया, झूठ बोल के अपनी जान छुड़ाना चाह रहा है।
कॉल पे कर ले, झूठ बोल के अभी कर ले, कर ले, चल अभी ठीक है, कर ले, मौजू तय कर, अभी कर ले, अभी कर ले, हाँ चल हो गया, अभी हो कर ले, गया कि मुशरिक कौन, अभी कर ले, मुशरिक कौन, चल ये तेरा टॉपिक है, हाँ बिल्कुल, चल मुशरिक की तारीफ कर और शिर्क की तारीफ कर कुरान हदीस से, चल। अबे बेवकूफ जाहिल, पहले देखिए सामने लिख रहा हूँ, दावा इसने किया, दावे पे मैं दलील मांग रहा हूँ, मुशरिक की तारीफ कर और शिर्क की तारीफ कर कुरान हदीस से। कौन ये दावा है? भागना नहीं, मुशरिक कौन ये दावा तूने है? दावा किया ना, इसी पे बात करूंगा, तेरा दावा है तो ना, ये दावा है, हाँ ये दावा है मुशरिक तेरा कौन? दावा, तेरा दावा है, मुशरिक कौन? अबे दावा तेरा ये होता मौजू है है, कि बरेलवी मुशरिक है, ये हाँ तो दावा तू है। हमें मुशरिक कहता है ना, कौन? तू हमें तो मुशरिक कहता है ना, मुशरिक की तारीफ कर और शिर्क की तारीफ कर कुरान हदीस से, तू चल। है मुशरिक, मैं साबित कर हाँ रहा तो हूँ, देख, मैं साबित कर रहा ना हूँ। साबित नहीं, पहले तारीफ कर। बरेलविया का ये देखिए अकीदा है, सामने लिख रहा हूँ, कैसे भाग रहा है, अबे देखिए। सुन, अबे रोक क्यों अबे रहा है? चूजे, अगर मैं अभी चाहूँ ना तो साहिल के जरिए तेरे तक पहुँच जाऊँ, लेकिन मुझे तुझसे मार पिटाई नहीं करनी है, मुझे तुझसे मार पिटाई नहीं करनी है, मुझे तुझसे मार पिटाई नहीं करनी है, मुझे तुझे तेरे अंदर गैरत जगानी है कि तू मुझे बुलाए, तेरे अंदर गैरत जगानी है कि तू मुझे बुलाए। इतना डर रहा है, देखिए सामने लिख रहा हूँ, मुझे इससे मार पिटाई नहीं करनी है, मुझे इसकी गैरत को जगाना कि ये मुझे बुलाए मुनाजरे के लिए, लेकिन ये भाग रहा है, ये भाग रहा है, मुर्गा बनाकर ये भाग रहा है। यहाँ मुझ आया, अगर मुझे कुछ कहा तूने, बेटा अच्छा एक घोड़ा मिनट बनाकर तुझे मारेंगे। मैं आऊंगा तो मुझे घोड़ा बना के मारेगा? हाँ अगर तू इस हैसियत से आएगा, तू खुद कह रहा है कि मैं मारने की नीयत से नहीं आऊंगा। एक मिनट और मुनाजरे की हैसियत से आऊंगा तो जब मर्जी कर ले तू मुनाजरा, लेकिन मुनाजरा यहाँ नहीं होगा। रो तू देखिए सामने लिख रहा भागा, देखिए सामने लिख रहा भागा, तेरे अंदर दमखम है तो मेरे एरिया में आ जा, मेरे एरिया में आ जा। अकेला आएगा? अरे सुन, अभी तू सामने मुनाजरा करेगा, तू अपना तू एक काम कर, मेरे एरिया में तू 10 आदमी लिया, 20 लिया, 30 लिया, 50 लिया, रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। नहीं सुन, नहीं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। अकेला आएगा? मैं अपनी जमात के साथ आऊंगा। माशाअल्लाह। अरे 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 मैं तो तुझे भी कह रहा हूँ, 50 आदमी लिया मेरे एरिया में। अकेला आऊंगा, एक मिनट रुक जा, चल मैं अकेला आऊंगा, अकेला आऊंगा, अकेला आऊंगा। हाँ अल्लाह की कसम मैं अकेला आऊंगा। सुन, मैं अकेला अगर आ गया वहाँ पे तो तू मेरे सामने बैठेगा? हाँ मैं सामने बैठूंगा। अल्लाह की कसम खा के बोल। मुझसे अल्लाह की कसम खाता हूँ, जमशेद रिकॉर्डिंग हो रही है। तो एक मिनट सुन, अकेला आ, मैं तेरी शाये करके दे, सामने तेरी शाये करके दे, तेरी शाये करके दे कि मैं जमशेद अली कादरी को अकेला बुला रहा हूँ और मैं उससे मुनाजरे के लिए बैठूंगा। तेरी जुबान की कोई वैल्यू नहीं है, तुम्हारी जुबान की कोई वैल्यू नहीं है, तुम्हारी जुबान की कोई वैल्यू है ही नहीं। तहरीर शाया करके दे, मैं तहरीर शाया करूँ, मैं तहरीर शाया करूँ? अबे जहन्नमी कुत्ते, सुन, जमशेद अली कादरी जहाँ जाता है ना अकेले जाता है, मरकज भी तेरे अकेले गया था, तेरे मरकज भी अकेले गया था। तू तहरीर शाया करके देना, मैं जमशेद अली कादरी को अकेला बुला रहा हूँ और मैं उससे मुनाजरा करूंगा बैठ के सामने फेस टू फेस। तहरीर शाया करके देना, तू तहरीर शाया करके देगा कि नहीं? तहरीर मैं कर दूं, मैं कर दूं? तू 50 आदमी लिया, तू 50 आदमी लिया, मैं कर दूं तहरीर शाया? मैं तो कह रहा हूँ, मैं तहरीर कर दूं शाया? देखिए सामने ग्राम कैसे भाग रहा है, ये इनकी औकात है, ये बुलाते हैं और बुला के भाग जाते हैं। तो आता क्यों नहीं? ये बुलाते हैं, जामा मस्जिद भी अकेला गया था, महरौली भी अकेला गया था, तेरी धज्जियां उड़ा दूंगा मैं, तेरी धज्जियां उड़ा दूंगा, समझा बेटा? तेरी पहुंच जाएगी, पहुंच जाएगी तो मैं भी डालूंगा। देखिए सामने तो सामिन इकराम, आपने सुना कि 1.25 साल से ये लोग कैसे भागम भाग मचा रहे हैं। I+ वाले भागे, इन्होंने दिल्ली में बैठने की बात की, वहाँ से भागे, वो सारी चीज़ मंजर आम पर है। इन्होंने गोंडा में मुनाजरा करने की बात की, इसके ताहिर ने कहा मैं 1 हफ्ते के अंदर फतवा शाया कर दूंगा, तहरीर शाया कर दूंगा मुनाजरे की, जमशेद तो मुनाजरा करने गोंडा आ जाना। मैंने उसमें हामी भरी। 1 हफ्ते बाद मैंने उसको कॉल की, वो भी रिकॉर्डिंग में लगा देता हूँ, आप सुन लीजिएगा। 1 हफ्ते बाद मैंने उसको कॉल करी तो वो गाली कर दे करके भाग गया, फ़ोन काट दिया उसने, फ़ोन रख दिया और तहरीर पर बात नहीं की। इनके दारुल इफ्ता से हमने फतवे ले रखे हैं, वहाँ जाने की इनकी हिम्मत नहीं। तो मेरा ये चैलेंज है, ये रज़ा वहाबी हो या इनके कोई भी अल्लामा फवामा पजामा हो, I+ वाले हों, कोई भी हो, मेरा ये चैलेंज है, अगर जमशेद अली कादरी अपने चैलेंज से फिरे तो मेरे मसलक के लोग मेरी पकड़ करें। मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ कि इन वहाबियों के अंदर अगर दमखम है, अगर ये है हलाली की औलाद, तो सामने बैठने का दम रखें, या तो ये मेरे लेटर पैड पे मेरे एरिया में आ जाए, मैं इनके इंतजामात करता हूँ, सारी चीज़ों का बंदोबस्त करता हूँ, या ये अपना लेटर पैड दे, हम इनके एरिया में जाते हैं और ये वहाँ पर इंतजामात करें। मौजू भी ये चुन लें, इख्तियार दिया इनको, जाओ
मौजू भी तुम चुन लो, दिन भी तुम चुन लो, तारीख भी तुम चुन लो, ठीक है, लेकिन शर्त यह है कि कम से कम 10 दिन का गैप होना चाहिए तारीख में। और अगर तुम ये चाहते हो कि भाई जमशेद अली कादरी अकेला आए तो मैं उस पर भी तैयार हूं, मुझे बस तुम्हारे मोतबर इदारे का लेटर पैड चाहिए जो तुम्हारी जिम्मेदारी ले कि हाँ भाई तुम मुझे बुला रहे हो तो तुम्हारे मोतबर इदारा तुम्हारी जिम्मेदारी ले। और अगर तुम इस पर भी कायल नहीं हो तो मैं लेटर पैड शाया करता हूं, मैं तुम्हें इख्तियारात देता हूं, तुम 10, 20, 40, 50 जितनी तुम्हारी हिम्मत हो उतने लोग मेरे एरिया में ले आओ, बात कर लो। अगर तुम चाहते हो यूट्यूब पर लाइव आना, वहां भी तैयार हूं, तुम चाहते हो गूगल मीट पर आना, मैं वहां भी तैयार हूं, लेकिन जो शर्त है वो शर्त ये है कि 2 आदमी तुम्हारी तरफ से, 2 आदमी हमारी तरफ से, ठीक है। गुफ्तगू होगी शराइत के ताल्लुक से, शराइत तय करके, ठीक है। और तुम कह रहे हो हम मुनाजरा करेंगे, तो शर्त यह है कि मौजू जब तुम चुन रहे हो तो सबसे पहले तुम्हारे लेटर पैड का हमें इंतजार रहेगा, और अगर मौजू हम चुन रहे हैं, इख्तियारात तुम हमें देते हो, तो हम तुम्हें लेटर पैड शाया करते हैं, लेकिन हमारे लेटर पैड शाया होने के बाद तुम्हारा लेटर पैड आना चाहिए मोतबर इदारे से, मोतबर कुतुब से, तुम्हारी मोतबर आलिम की सनद के साथ, और वही चीज हम करेंगे। अगर हम अपनी चीज से पीछे हटे तो हमने खुदा की कसम खाई है। तो अब तुम्हारे ऊपर इख्तियारात छोड़े हमने। जमशेद अली कादरी का चैलेंज कयामत तक, जब तक दुनिया में जमशेद अली कादरी मौजूद है तब तक तुमको ऐसे ही जलील करता रहेगा। जाओ, तुम जितने बड़े मुनाजिर को लेके आना है आओ, अगर उसका ये ख्वाहिशमंद है कि हम तुम्हारे आलिम से मुनाजरा करेंगे तो हम अपने आलिम को भी लेके आएंगे, ठीक है, हम अपने मोतबर आलिम को भी लेके आएंगे, लेकिन हम मोतबर आलिम को जब लाएंगे जब तुम हमसे मुतालबा करोगे, नहीं तो हम ही काफी है तुम्हारे लिए। हम 5-6 नाम तुम्हें देते हैं, जिससे तुम्हें चाहिए उससे करो। रिफायत अली साहब रिजवी, जमशेद अली कादरी, सरहान भाई, अमन भाई, ठीक है, वाहिद भाई, ठीक है, और हमारे एहसान भाई, ठीक है, हमारे मौलाना तुफैल शमसी साहब, हमारे मौलाना अशफाक साहब, हमारे राहिल खान साहब, हमारे जितने लोग हैं, तुम्हारी औकात अगर जिससे चाहे मुनाजरा करने की हो हमें बता देना, लेकिन हम सिर्फ अपनी जिम्मेदारी ले रहे हैं। क्या कि मैं अपने किसी भाई को जहमत नहीं दूंगा, मैं अपनी जिम्मेदारी लेता हूं, मैं अकेला ही काफी हूं। पूरी वहाबियत को मेरा ये चैलेंज है, अगर वहाबी तुमके अंदर दमखम है, गैरत है, तो आओ सामना करो मेरा, बैठो मेरे सामने, बुलाओ मुझे या आओ मेरे पास, या गूगल मीट पर आ जाओ, शर्त जो है वो मैंने तुम्हें बता दी, या यूट्यूब पर आ जाओ। अगर तुम नहीं आ सकते तो थू है तुम्हारी जिंदगी पर, लानत है तुम्हारी जिंदगी पर। गूगल मीट से पैसा कमाने वालों, लोगों को बरगला करके पैसा कमाने वालों, अपने अब्बाओं को रिकॉर्डिंग भेज करके उनको खुश करने वालों, तुम कभी मेरा सामना नहीं कर सकते। जाओ, तुमको चैलेंज ठोक दिया मैंने। अब देखें, जब इन्होंने गोंडा में बैठने की बात की तो इनके ताहिर साहब ने चैलेंज किया था, हम 1 हफ्ते में तहरीर देंगे साहिल के सामने। तो देखिए, मैंने जब उसको कॉल किया तो देखिए वो कैसे भागा। अब इसी गुफ्तगू के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ, सारी चीज आप तक पहुंचा दी, इसको सुने, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, इनके चेले चापड़ों तक इसको पहुंचाएं, ताकि ये जो है आगे से किसी हमारे भाई को परेशान ना करे। जिसको भी ये परेशान करे ना, उसको ये रिकॉर्डिंग भेज दें उठा के, और मेरा चैलेंज उसको भेज दें, ठीक है। दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी, ताहिर साहब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। भाई आप कौन है? जमशेद अली कादरी बात कर रहा हूँ। जी फरमाया हजरत वाला, क्या है? बहुत दिन के बाद याद की। याद तो आपको करना था ना, आपने कहा था मैं 1 हफ्ते में लेटर पैड जारी करूंगा। अरे यार, अब तो दिल्ली के साथ साथ गोंडा से भी भाग रहे हो मुनाजरे से। अभी दिल्ली से तो भागे, तुमने चैलेंज किया गोंडा आओ, तो अब मैं राजी हूँ गोंडा आने के लिए। तो लेटर पैड आपने बोला 1 हफ्ते के अंदर में दे दूंगा। अहमद रजा से भी आगे बदतमीजी नहीं करना। आपने क्या बोला था साहिल, क्या बोला था इन्होंने? 1 हफ्ते के अंदर अंदर लेटर पैड दे दूंगा। साहिल 1 हफ्ते से ज्यादा हो गया, अब ये गोंडा से भी भाग रहे हैं, देख लो अभी लोग गोंडा से भी भाग रहे हैं। आ जाना डायरेक्ट कैसे आ जाएगा? डायरेक्ट कोई मुनाजरा होता है? अरे तो आ जाना। कैसा जाहिल आदमी है, मुनाजरे के उसूल भी नहीं पता है। तेरी हैसियत तेरी औकात तो समझ में आ रही है ना। दिल्ली से मुनाजरे से भागे, तुमने चैलेंज किया गोंडा में करेंगे, अब तुम गोंडा से भी भाग रहे हो। तो तुम जैसे जाहिलों को मुंह भी नहीं लगा। अच्छा, जाहिल हूँ तो साबित कर। अबे तो जाहिल हूँ तो आराम से जीत जाना मुनाजरा। यही है
तेरे जिहालत के लिए यही मैं कह रहा हूँ काफी है कि ताहिर, अगर गाली मैं भी जाहिल हूँ तो बकता तुम्हारे है, लिए आसानी हो जाएगी ना, बदतमीज भी मुनाजरा है, जीत जाओगे, और तू बात सुनता तुम्हारा नहीं है, नाम हो तहम्मुल जाएगा से बात रोशन। नहीं कर रहे, जाहिल होने के लिए काफी ये है। देखो अब बड़बड़ाना शुरू कर दिया। मैंने तेरी कहा तूने जिहालत के ऑन लिए द यही रिकॉर्ड काफी है बोला कि तेरे था अंदर 1 हफ्ते तहम्मुल के अंदर नहीं है, लेटर पैड मिल तेरी जाएगा। निफाक, तेरी ए ताहिर झूठाई भागना सब नहीं, ताहिर इंकशाफ हो ताहिर ताहिर गया। भागना नहीं। तूने जो एडिट चलो और कितना करके वक्त वहां लेगा पे बता, मरकजी और दिल्ली कितना से वक्त एक लेगा लेटर एडिट पैड जो के लिए बता। लेटर लगाया अरे था लेटर पैड के लिए और कितना वक्त लेगा बता। तुझसे मुनाज़ा करने के लिए, हाँ तुझसे हाँ। तू है तेरी जाहिल बोलती तेरी अल्लाह, माँ। देखो किसी साहिल, और देख अपने रहे हो? आलिम को लेके आ, अच्छा तू तू आलिम बैठ है, के सुन मुनाजरा तू कैसे आलिम होता है, है। तू आलिम है, पहले किसी तू मोतबर आलिम को है, लेके आ, पहले तू अपनी बता, तू आलिम है। चल हमें भागना मुंह नहीं, नहीं फोन यहाँ काट से, के, कालू फोन काट पजामा के नहीं वाला भागना। अमल, चल ताहिर भाभी झूठा तेरे रजा सल्फी को लेके आ। भाग जा। हेलो। भाग।